आप उस पर यूट्यूब पे डालते हो साथ में लिंक क्या? हाँ जी, बाद में डालते हैं यूट्यूब पर, ओवर होने के बाद। कर दें श्याम जी, फिर स्टार्ट कर दें। हाँ, अब धीरे धीरे चलते रहेंगे मेंबर ऑफ। Good evening, friends. I warm welcome CA Advocate Ved Jansab, past president of our ICI and guest speaker of the today's webinar. Friends, this is the 11th VCM of Vikas Mark C Study Circle in this calendar year of 2021 for 2 CPRs and cumulative 23 CPRs till date in this calendar year of 2021. Friends, the most hot topic, technical session, will be deliberated on the reopening and reassessment under Section 148 and legal validity of notices recently issued under Section 148/148A under Income Tax. And this session will be deliberated by CA Advocate Ved Jansab, well-renowned speaker and expert on the subject. I request JP Agrawal ji, convener of our study circle, for his welcome address and to proceed further. Thank you. Thank you. Thank you, Shyamji. Thank you. Good evening, friends. I would like to welcome all of you to this very 11th virtual CP meeting of this calendar year 2021. Hope everyone is safe and fine with family at home. I welcome CA Advocate Ved Jainji, former president of ICI, a well-known personality, a dynamic and expert on the subject, guest speaker of today's virtual CP meeting. In this technical session, CA Advocate Ved Jainji will discuss on reopening reassessment under Section 148 and legal validity of notices under Section 148/148A. He is very much expert on this subject. We are really thankful to CA Advocate Ved Jainji, today's speaker, for giving his valuable time to the members of our study circle to share his views, who gave his consent for our program in spite of their busy schedules. Recent अभी भी वो वेजन साहब अपने हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हैं और फिर भी हमारी वेबिनार्स को शेयर कर रहे हैं, तो काफी बिजी हैं, उसके बाद भी हमको काफी टाइम दिया. Friends, before handing over the dash to CA Advocate Ved Jainji, I take a privilege to introduce him. Although it is not everybody know our guest speaker Ved Jainji, past president of our ICAI, but I take a privilege to introduce him formally. Ved Jainji has been a man of prudence, veracity, and intelligence since birth. He was a rank holder in both CA Inter and CA Final, a triple bachelor's degree holder, Bachelor of Science from Punjab University in 1973, completing his Chartered Accountancy in 1976, Bachelor of Arts in Economics in 1979, Bachelor of Law in 1980, a prolific writer, command in Hindi, English, French, Urdu, and Punjabi, authored many books on direct tax, articles on tax matters in various journals, newspapers, and frequently participates in various television programs on finance, taxation, economy, and related subject. A fellow member of ICAI for more than 4 decades. In the year 2008, he was elected as a president of the Institute of Chartered Accountants of India. During his tenure as president, ICAI earned various credentials which embark a new era of education, training of students, and professional developments of members. A few are I'm specifying here under. During his tenure, ICAI revenue got doubled with an increase of more than 100 crores. On international front, he was able to reach out to the all important bodies, institutions across the world. He was instrumental in getting memorandum on understanding with Institute of Chartered Accountants of England and Wales, recognizing each other qualifications. Starting accounting technicians course for producing second tier accountants, introducing 3 months personality and communication development residential program with the guidance of IIM Ahmedabad on the line of IAS Academy, Mussoorie, setting up digital library, giving Philip up to research on issues on accounting and public finance,
setting up government accounting committee to assist central and state government in improving its accounting. He has been a founder board member of Indian Institute of Corporate Affairs 2008 2013. He has been on the governing board and office bearer as treasurer during 2012-18 of Ramjas College, University of Delhi. He has been treasurer of Public Health Foundation of India (PHFI) during 2015-20, an autonomous public-private body engaged in public health activities. He has been board member of International Federation of Accountants (IFSC) during 2008-11, a global organization for the accountancy profession with its 138 members and 20 associates in 123 countries all over the world. He has been chairman committee on direct tax of ASSOCHAM from 2004 to 15 and its vice president during 15-17. He has been director on the board of National Aluminium Company Limited, NALCO. Presently, he is director on the board of DLF Limited, Neventia Healthcare Limited, and chairman MCX Clearing Corporation Limited. His integrity, zeal, and common commitment towards the society has been recognized and appreciated by the government of India. His talent has been appreciated by the media as well. Practicing professionals with specialization in direct taxes, expertise in income tax, special emphasis on tax planning, tax litigation, and tax advisory for multinational corporate houses. Now I invite Shri Ved Janji to the speaker to deliberate this webinar. Thank you, sir. Ved Jan sir. Thank you, Agarwal Sahab. That's elaborate introduction and the compliments. My dear friend Jayaprakash ji, Agarwal ji, Shyam Sundar ji, Pradeep ji, Sunil ji, and all my professional colleagues, friends, brothers and sisters. It's my proud privilege to be here at the Vikas Marg Study Circle to address on the hot topic of 148. I had the privilege of coming to the study circle a number of times. Now all the meetings have been physical meeting. Yeah. This time the Corona crisis, this COVID-19 has given some challenges and some opportunity also. It has become a challenge. We are not physically meeting, interacting, sharing thoughts, ideas. But at the same time, we are having the privilege of meeting more frequently and at a short notice without wasting much time. You can join at the appropriate time, log out at the time. So these are the challenges and opportunity which has come into the I think the whole of the society now and the world at large. This crisis started in India somewhere in March 20, and now I think it's almost for more than 16 months, and still we do not know when this crisis is going to be over and how it is going to work and how it is going to affect it. But I will say it has affected the life of everyone one way or the other. Some way or the other way it has affected me. So one need to be very restructure, reprogram, and plan it out, and how one is going to take it, and then profession. Just a minute, please. Now, now, as we see that in the last 16 months, many challenges have come up. Due dates have been extended, lot of extension, lot of challenges coming up. Income tax has also thrown a lot of challenges to the profession. The tax people, revenue authorities were visibly concerned in the first part how to collect the taxes, and they do have postponed in the initial phase. As you see, the due date of payment of taxes also was extended. But later on, the government realized that money is required, so no extension for the payment of taxes, but other extensions are there at on various dates on that part. So there have been lot of notification, new amendment, taxation law, and all those things happening. And despite this Corona crisis being there, so this is a challenging year which has gone through and working, etc. But one thing which I am just concerned is the challenges being posed by this different amendment, different issues coming up, and so many amendments being made and so many new forms being introduced. I don't know how it is going to work for the taxpayer, people like us who helps in tax compliances, and probably the government authorities also. The latest example is this new portal, which was supposed to be a portal of second generation, a portal which has to be supposed to be
be user friendly, bring you in a new domain. But we all know everyone has landed into big difficulty. Now all tax professionals are just wondering what need to be done with this tax portal, etc. I normally call tax people to be visionary. And one of the reasons I call visionary was that they introduced this faceless assessment much before the pandemic came. I just wonder whether they were having any idea that this pandemic is coming up and the taxpayer may not be required to come to the office and they need to meet distantly, and that's why they introduced it. Because in September 19, the faceless assessment started somewhere. And this pandemic in China came in December, and in India it hit in January later on. I'm still not knowing whether they were having an idea of this pandemic much before this the world came to know. But I can tell them that they were visionary. They could see that something like this happens, so they introduced the faceless assessment also on this part. This looked to be something good exercise. But then thereafter in March 20, they postponed it, realizing yes, pandemic is there, some crises are going on. And then thereafter, later, a lot of extensions were being given. But I was concerned when in September 2020, when taxation amendment law was introduced to replace the ordinance, in that replacing ordinance, they brought many changes in the provision, tax provision, charitable trust, institution, all trusts to again get registered, all this, I believe, a lot of complication and lot of compliance provision being increased. And everybody is wondering what happened. My take for this charitable institution is that they all render valuable service to the society. We all know all charitable trusts and society, those people are. At the end of the day, I believe at best it is a 50% deduction in respect of the contribution. So I spend 100 rupees, get back 15 rupees. So net impact is 85 rupees goes out of the pocket. Anybody who does charity, he has to issue a check of 1,000 rupees. In income tax, he will claim a 500 rupees as reduction in the income. And if he falls in a tax rate of 30%, so it will be 150 rupees tax saving. So after paying 1,000 rupees, actually, you get a benefit of 150 rupees only. This should be a realization coming to the people. And then to say that these trusts are manipulating, I believe we all chartered accountants know that by and large more than 90% at least are trusts which are doing good business. Even the so-called engineering institutions, schools and colleges, where do we make that they are making money? My impression is, had these engineering institution, medical college, school, public school would not have come up, what would have been the level of educations? In 90s, we created IT sector and we became the world leader in providing IT services. This could happen that we had a large population, large student of English speaking and IT savvy student, so that they could capture the market and they could capture the opportunity which is there. And all these children which initially took the initiative in IT are from public schools, are from the engineering college or medical college, whatsoever, and IT. So this is, I believe that's one need to take into consideration. So charity has a payment, but that's besides the point. The issue today is this 148 notice and how to handle it and what are the challenges which are coming up on this issue. I believe we are all aware of this old provision of income tax. And we were quite accustomed to working that till 31st March 2021. The law was very simple, that if assessing officer has a reason to believe that income has escaped assessment, then he has to record the reasons. After recording reason, if it is 4 year or 6 year, whatever it is, he has to seek an approval. By and large, if it is a 143.1 assessment, then the approval has to be obtained from the Joint Commissioner. If it is 143.3, it has to be Commissioner. And then he has to make an additional allegation that you have failed to disclose fully and truly all material facts necessary for assessment. So these were the two, I think, fundamental principle. Reason to believe, record that reason, get an approval, 4 years, 6 years. And 16 years was for this foreign account, bank account. If you have something, bank account, etc., then the government thought, looking to the political, I think, hue and cry, 16-year period was worked out in the year 2012-13 only. So these were the three challenges only. Now, somehow or the other, I could not make it out. On 1st February 2021, and I believe when this budget was being prepared,
I think the people who were looking at after this drafting of the budget document, finance bill, they would have been well aware that what has happened in the past year. In March 20, on 24th March, when we put a lockdown, 23rd March, and on 27th March, 28th March, we issued a press release extending the date, and then we issued an ordinance that all limitations which are expiring on 31st March will get extended till June. Initially, these were 30th June, and then it was extended to December and March on April. So I believe when on 1st February budget was presented, everyone was aware that there may be, there are two assessments which are getting time barred. Their notices have to be issued and still pending, and probably things may not be so simple from 1st April 2021. One reason can be in the month of January, I believe this pandemic was not so high peak at that level. So probably the thought would have been, every notice will be issued by 31st March 2021. But still they introduced a new scheme on 1st April on 1st February 2021. The parliament bill was introduced. The bill was passed in the month of March and was notified also. And I'm surprised at the same time when this bill was being notified, a new finance bill was being notified, the old provision got extended by another notification till 30th. Had that time also they could have withheld the new finance act. That provision they could have said by ordinance will not be applicable from this assessment year, they will be applicable from the next year or will be applicable after a date. But simultaneously they declare both the date, one extension, etc. And that has become a bone of contention now in this 148 proceeding. That's the crux of the issue. But before I come to that, I need to just explain you what this new law is and how it affects and how these challenges have come up. We all know that under the old act, as I say, 4 years, 6 years, and 16 years. Under the new law, they say from 1st April 2021, a new section 149 introduced where they say assessing officer will not be able to reopen the assessment after the end of 3 years from the end of the relevant assessment. This is the law on 1st April 2021. And second part says assessing officer shall not be able to more than 3 years or 10 years in case there is an income escaping assessment which is represented in the form of an asset. And then represented in the form of asset has been defined to mean which is represented in the form of a land, building, any share, security, loan, advances, bank balances. Inclusive definition, it can be anything else. Probably the idea was if they find out somebody has purchased a property from which has not been disclosed, somebody has a bank account which has not been disclosed, or property has been disclosed, purchased for 50 crore rupees or 50 and the actual consideration is more than that, something like this, that is represented by asset. You have given some loan or advance which you have not accounted for, number 2 advances, you have given finance some money. So that's the basic idea they introduced it. 10 years we can take it out. But one important aspect they put right away is that even though we are saying that we are extending the period to 10 years, 6 years to 10 years, but this 10 year will also not be applicable in respect of those assessments which could not be have been opened under the old law from 1st April 2021. And we all know that under 1st April 2021, 6 year period, if I count, under the old law, 31st March 15, and assessment year 14-15, could not have been opened on 1st April 2021. There can be some different view that 13, 14, 14, 15 date was extended till 30th June 2021. So probably under that, it could have been opened up to 30th June 2021. So that 10-year period is not going to haunt for this. So now this is the major amendment which has been made on that part. This is the challenge which is coming up. Now, another challenge is they say that this is the new limitation which we are putting up 3 years and 10 years. And then they say that we are changing the procedure the assessing officer need to adopt for reopening of the assessment. And this will also be effective from 1st April 2021. As I said, earlier the assessing officer was supposed to record reason and then initiate to issue 148 after seeking approval. Now they say no, reason need not be recorded. If
assessing if income has escaped assessment, assessing officer shall have a right to issue notice under section 148. Now, immediately the question comes up, if income has escaped assessment, then assessing officer had, how you will determine that income has escaped assessment? So somebody has to say that income has escaped assessment. In order to remove this problem, now they say that where assessing officer has information which suggests that income has escaped assessment, that will be considered to be income escaping assessment. Now, how that suggestion will come up now? The suggestion can come up mainly on the basis of what we call a computer related, the way that they carry out a scrutiny on the basis of a risk management strategy. In case it is found that there is a suggestion comes up that income has escaped assessment, then there is a information. And this is computer based, meaning thereby you have filed a return of 2 lakh rupees, you have purchased a property 50 lakh rupees. There is apparently no reason, no source coming out. Similarly, there is a bank account which you have declared, which is not somewhere coming it out. So there is a suggestion which is coming up from 26 AS or TDS or somewhere like. So that is the idea. Second was the C&AG, where while carrying out the audit of the returns filed or the assessment made, the C&AG points out that some income has escaped assessment. Those they said, yes, there is a reason that income has escaped assessment. Then they say, these are the 2 factors where we will work it on. In addition thereto, there are 5 factors where will we assume that we will deem that income has escaped assessment. Now, in case a search has been carried out on a person, now in the moment the search is carried out, there will be a suggestion, it will be deemed that income has escaped assessment, and that period of 3 years or 10 years, whatever it, depending upon whatever the documents are found, on that basis the notice 148 will be issued. Similarly, there is a deemed search where some other excise authority or GST authority makes some seizure or books or something like this, and income tax people then requisition under 132A. That will also be considered to be a deemed search, and they say automatically we will assume that income has escaped assessment. Survey has been carried out. There we will also assume that that is also one indicator that income has escaped assessment. In the case of a search, it is not necessary the cash, money, jewelry is found of person who has been searched. Somebody else money has been found, 153C cases. So there also the assumption will be that the income has escaped assessment. And then there can be a case like what we call books of account, document, etc. are found which indicate that this books of account document pertains to or the information there belong to some other person. So even in that case, it will be deemed that a search has been carried out. Now, if we look at all these factors, still there is a suggestion that income has escaped assessment, but how do you will proceed? So they say the assessing officer will not straight away go to issue 148. On the basis of this information, he will first obtain an approval from the commissioner, principal commissioner. If it is within 3 years, and if it is more than 3 years, then he will obtain the approval of the principal chief commissioner. And on that basis, he will carry out an inquiry himself, independently. He will, at his level, carry out an inquiry. He will look at the document, what you have done, how you have done, and etc. Sunil ji, I think you are focused on the screen. Okay. So the meaning thereby that he will carry out an inquiry. After carrying out inquiry, if he is of the opinion that assessee should also be called, and he has to be given inquiry has to be made, so he will again seek an approval from the principal commissioner or chief commissioner that look, this is the information which has come to me. On the basis of I have carried out an inquiry at my level, if we suggest that there is something and I now need to carry out an inquiry with the assessee, so he will seek an approval. On getting an approval, then he will write a letter to the assessee, and assessee is required to give a response to that. And within a period of 30 days thereafter, he is supposed to, 7 days, he is supposed to pass a reasoned order whether he want to continue with the reassessment or he want to drop it. And then again, passing the reasoned order, he has to seek an approval of the principal commission. After seeking this order, then he has to issue a 148 notice with the approval to the assessee. So there are 4 steps which are required. Now assessing officer under the old scheme make a blind deal
he comes out across some information from some department and just write a reason, and then he issues a notice to you. Now it will not be. It will be a 4-step process which the assessing officer will have to follow, and 4 approval he will take, and then he will give a 148 notice. But however, this process need not be followed in search cases, but in survey cases it has to be followed. So this is the new mechanism which has come up now. So, sir, Now- all the for all the 4 events, he has to get the approval from the commissioner. Yes, I now let me share the presentation. I think that will help you to understand a little bit better. सर 10 इयर्स के लिए आपने एसेट का बताया था, तो अगर किसी ने शेयर एसेट का होना जरूरी है। एक मिनट पहले मैं इसको थोड़ा सा पूरा कर दूं, या फिर आपको थोड़ा सा फिर मैं ना एक बार फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेने में आराम ज्यादा लगेगा मुझे. Just to explain you this, when the budget was introduced, this was the reason given by the government that why we wanted change. I just wanted to make you, because your first question, I think your agitating mind is why so many people are agitating the issue of the new notice when there is a notification for extending the due date. That's a mind which is coming up. So that's why I gave you an idea what was the old scheme and what was the new scheme. And if whether the new scheme is different than the old scheme, and that whether the department has a right to follow old scheme when the new scheme is already operational. Now, government said when presenting the budget that our earlier scheme, if you look at this bold point, however, I hope you are able to see my screen. Yes, sir. However, the experience with this procedure has been no different. Like the provision of allotment, these provisions have also resulted in number of litigation. सरकार का कहना है कि जो 148 का ये सर्च असेसमेंट जो मैं करता हूँ 153AC में, इससे लिटिगेशन बढ़ रही है. Due to advancement of technology, the department is now collecting all relevant information to transaction taxpayer from third party in Section 285B Act. Statement of financial transactions are reported. Similarly, information is also received from other law enforcement agencies. This information is also shared with the taxpayer through annual information statement under Section 285BB. Department uses this information to verify the information declared by a taxpayer in the return and to deduct known filer or those who have not disclosed the correct amount of total income. Therefore, assessment or reassessment of income, especially to large extent, is information driven. In view of the above, there is a need to completely reform the system of assessment or reassessment or recomputation of the income escaping assessment and the assessment of such related cases. The bill proposes to complete a completely new procedure of assessment, escaping assessment, and new system would result in less litigation and would provide ease of doing business to taxpayer as there is a reduction in the time limit by which a notice or a computation can be issued. I pose a question to myself. The last 3 months have shown whether it had led to less litigation, it is a ease of doing business, or the period has been reduced. Experience clearly says even in such cases, though they said 6 to 10 years, invariably in every case 10-year notice is issued. Now this is the what has the difference which has been made under old part and new part. And the question which you were asking was, now this is the procedure. AO to conduct inquiry if required with prior approval 148. सजेशन आ गया उसके पास कि भाई इनकम एस्केप कर रही है, कहीं से लग रहा है, लेकिन उसे पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी. ये नहीं कि उठाया जो आया चिपका दिया, पहले आज की डेट में नोटिस इश्यू कर देता ना, चिपका के नहीं कर सकेगा. और उसके बाद अप्रूवल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बी गिवन टू द एसएससी विद प्रायर अप्रूवल. नंबर 2. नंबर 3, एओ टू कंसीडर रिप्लाई कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बाद एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा जिसमें लिखा जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये देखा इसके बेस से मेरे हिसाब से इनकम एस्केप कर गई है. ये 4 अप्रूवल चाहिए. आपने पूछा ना कितनी अप्रूवल है.
यस यस इंक्वायरी ये नहीं है एक इंक्वायरी करने से पहले अप्रूवल, आपको बुलाने से पहले अप्रूवल, बुलाने के बाद ऑर्डर पास करने की अप्रूवल, ऑर्डर पास करने के बाद नोटिस इश्यू करने की फिर अप्रूवल। ये चारों अप्रूवल चाहिए उसको, उसके लिए वर्किंग करने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ है। ये 4 अप्रूवल, और इसके लिए दो ऑफिसर हैं बिल्कुल। अगर 3 साल के अंदर कर रहा है तो प्रिंसिपल कमिश्नर से, और 3 साल से ज्यादा है 10 साल से तो हर अप्रूवल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से आएगी। ये भी अपना आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक अप्रूवल में एक पॉइंट हो रहा है, जैसे जिस इशू पर ये 148 किया है, अगर उसके अदरवाइज कोई इशू उसके नोटिस में आता है तो भी फिर वो कर सकेगा। वो पार्ट क्लियर कर दिया उन्होंने, वो क्लियर कर दिया, वो आ रहा है, मैं आ रहा हूँ उस पार्ट पे। अच्छा, अब उसके लिए वो नहीं है, एक अगर अप्रूवल ले लिए तो बाकी अगर इनकम आ गई तो उसमें वो कर लेगा। अच्छा। अब ये पीरियड हो गया जो मैंने पहले कहा था, पहले ये राइट साइड पे 6 साल 4 साल अब 16 साल का था, ये 3 साल और 10 साल का हो गया। 16 साल वाला बढ़ा दिया क्योंकि इनको फॉरेन बैंक अकाउंट से मतलब नहीं रहा, इनकम टैक्स में बोले ब्लैक मनी में पकड़ लेंगे उसको। तो ब्लैक मनी में तो कह दिया ना कि अनलिमिटेड है। आज की डेट में अगर ब्लैक मनी एक्ट पढ़ूं सही ढंग से तो शाहजहां के जमाने की इनकम भी टैक्स हो सकती है। अगर किसी ने बैंक अकाउंट बाहर रखा हुआ है और वो डिक्लेयर नहीं है, हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 1861 से आया है और उससे पहले था नहीं, तो कह सकते हैं भाई आपका पैसा बाहर का घूम रहा था, आपने ये डिक्लेयर नहीं किया तो लिया। और कब असेसमेंट करेगा? करंट ईयर में असेसमेंट करेगा उसको। जैसे मैकेनिज्म व्हिच हैज बीन वर्कड आउट, तो ये पीरियड उसने घटा दिया इसके बारे में। अब सवाल यहां आता है, ये एक्ट का पार्ट है जो नया बनाया। उन्होंने क्या कहा कि हमने 3 साल और 10 साल का पीरियड तो कर दिया है, लेकिन हम उसको कोई नोटिस नहीं दे पाएंगे जो पुराने एक्ट के अंदर नोटिस नहीं दे सकते थे उस दिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, provided that no notice under section 148 shall be issued for any assessment year relevant to the assessment year beginning on or before the first day of April 21, if such notice could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit specified under the provision of clause B of subsection 1 as they stood immediately on this. अब क्या समझे इस बात को? ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई नए एक्ट में लिख दिया कि हमने 10 साल का पीरियड तो कर रहे हैं, लेकिन 1/4/21 के बाद हम उस असेसमेंट ईयर का नोटिस नहीं इशू करेंगे जो हम उस समय पुराने एक्ट के अंदर नहीं कर सकते थे। और पुराने एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन था? ये था कि 6 साल से ज्यादा का नहीं कर सकते। अगर मैं एक्सटेंडेड पीरियड को छोड़ दूं जो नोटिफिकेशन से एक्सटेंड किया हुआ है, 1/4/21 को 14/15 का नोटिस इश्यू हो सकता था? नहीं सर, नहीं हो सकता था। नहीं 13/14 का हो सकता था? नहीं। 12/13 का? नहीं सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था ना। तो इन्होंने क्या कहा कि हम 1/4/21 के बाद वो नोटिस नहीं देंगे जो पहले हम नहीं दे सकते थे। तो ये तो मानते हैं कि 1/4/21 को 12/13 का नोटिस तो नहीं दे सकते थे। बिल्कुल, वो तो नोटिफिकेशन पे भी नहीं दे सकते थे। यस। 13/14 और 14/15 का एक्ट के हिसाब से तो दे नहीं सकते थे। लेकिन जो वो नोटिफिकेशन निकला हुआ एक्सटेंडेड पीरियड का जो 3 महीने का था, उसके अंदर तो वो नोटिस दिया जा सकता था। तो सवाल आएगा कि अब ये जो लिखा है 6 साल का 194B का 6 साल का पीरियड का, ये 6 साल का पीरियड यहां से काउंट होगा या वो 3 महीने का पीरियड एक्सटेंडेड था? ये एक अपना आप में नया सवाल बनेगा। सर एक्सटेंडेड पीरियड को भी 12/13 तो बंद है, 10 साल का नहीं दे सकते कभी भी। बिल्कुल। ये मानते हो? 13/14 14/15 का 30/21 के बाद नहीं दे सकेगा, राइट, क्योंकि वो नोटिफिकेशन भी खत्म हो गया। 13/14 और 14/15 का 1/4 से लेके 30/6 के बीच में लड़ाई है कि वो पुराना नोटिफिकेशन लगेगा या नहीं लगेगा उसके पीरियड की, इस क्लास के लिए, सिर्फ इस क्लास के लिए। बाकी की क्लास में मैं बाद में आता हूँ प्रोसीजर के। ये आ रहा है ना? यही लड़ाई है। दिस इज क्लियरिटी इसके बारे में लड़ाई, ठीक है। और 1/7/21 के बाद तो कोई इश्यू नहीं कर सकते।
एक तो ये इंटरप्रिटेशन है। एक और इंटरप्रिटेशन है, इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इशूड एट दैट टाइम। या दैट टाइम का मतलब क्या है? दैट टाइम का मतलब ये है कि जिस समय नोटिस इश्यू हो रहा है, या एट दैट टाइम का मतलब 1 अप्रैल 2021 है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। 31 मार्च से होना Such चाहिए notice could not have been issued at that time. What is the meaning of at that time? Meaning thereby, एक तो कहेंगे कि साहब जिस डेट को नोटिस इश्यू हो रहा है, अगर उस डेट को वो नोटिस इश्यू नहीं हो सकता था पुराने एक्ट के अंदर, तो ये आप इसमें नहीं कर सकते। तो मैं ये इंटरप्रिटेशन ले लूं तो ये 10 साल वाली कहानी तो हमेशा के लिए फेल हो गई, तो 6 साल ही रहेंगे हमेशा। क्योंकि किसी भी समय पे जब आप नोटिस इशू कर रहे हैं, पुराने एक्ट के अंदर तो 6 साल से ज्यादा का इशू कर ही नहीं सकते थे कभी भी आप। अब 10 साल में जाएंगे कैसे? तो इसका मतलब है एट दैट टाइम का इंटरप्रिटेशन 1/4/2021 को है। अब 1/4/2021 को आप अगर उस समय आप नोटिस नहीं दे सकते थे, तो वो उससे ज्यादा नहीं दे सकते थे, तो ये जो आपकी 10 साल वाली क्लास है, ये हमेशा के लिए 14-15 तो बंद हो गया। उसके बाद जो किसी को 6-7 साल मिलेंगे, किसी को 8 मिलेंगे, किसी को 9 मिलेंगे, किसी को 10 मिलेंगे। सपोज करो कोई एलिगेशन लगता है 2021-22 में, इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो तो 14-15 खोल नहीं पाएगा, 15-16 खोलेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये खोल सकता है, 7 साल खोल देगा। हम 6 साल कहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के चक्कर में 7 हो जाते हैं। अगले साल में वो 8 खोल पाएगा, अगर 1/4/21 को बेस मान के चलें तो। उससे अगले साल में 9 खोल पाएगा, और उससे अगले साल से 10 चलने शुरू हो जाएंगे, और उससे अगले साल के अंदर फिर 15-16 बंद होगा जाके, 50 लाख हो जाएगा। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन। एक तो ये क्लास तंग कर रही है, तो इसके अंदर 1/7/21 को, अब सवाल एक और आएगा, एट दैट टाइम 1/7/21 को, 1/4/21 को तो सरकार कहेगी 13, 14, 14, 15 खुल सकता था। मेरा प्रोविजन चल रहा था, एक्सटेंडेड पीरियड का प्रोविजन चल रहा है मेरा उसके बारे में। अब उसके बारे में सरकार ने एक और काम किया। ये जो 2 इंटरप्रिटेशन थे, ये मैंने ज्यादा समय इसमें नहीं लगा रहा, ये दोनों इंटरप्रिटेशन से एक टेबल बनाई कि कौन सा खुल पाएगा, कौन सा नहीं खुल पाएगा। इंटरप्रिटेशन 1 वो है जिसमें हम कह रहे हैं कि एट दैट टाइम का मतलब है जब नोटिस इश्यू हो रहा है, और इंटरप्रिटेशन 2 का मतलब है एट दैट टाइम का 1/4/21। तो इसका अगर टेबल को लेके चलें तो ये इसमें जाएगी, इसकी वर्किंग आएगी। अब सरकार का झगड़ा हुआ, अब आपका जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पर है। 13-14 की असेसमेंट खोलने के लिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन 31/3/20 को निकाल के ये कहा कि 20/3/20 29/6/2020 के बीच में जो भी लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है वो 30 जून तक चली जाएंगी। 24 जून को ये लिमिटेशन फिर बढ़ा के 31 दिसंबर तक की जो 31 मार्च तक कर दी गई थी, और फिर 31 मार्च को बढ़ाकर 30 अप्रैल करी गई, या फिर 27 अप्रैल को बढ़ा के 30 जून कर दी गई। ये 4 नोटिफिकेशन निकाले। कहना तो बहुत आसान था। और सरकार ने क्या नोटिफिकेशन निकाला था? दिस इज द नोटिफिकेशन। पहले तो ऑर्डिनेंस आया था, अब फिर ये एक्ट बन गया, टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन specified or prescribed and the limitation period fall during the period from 20th day of March to 31st day of December or such other date after the 31st December as the central government may by notification specify in this behalf for the completion or compliance of such action, completion of any proceeding or passing of any order or issuing of any notice, intimation, notification, sanction or approval of such other person by whatever name called by an authority, commission or tribunal, but whatever name called under the provision of specified act, and where completion or compliance of such action has not been made
within such time, the time limit for completion or compliance of such section shall, notwithstanding anything contained in the specified, shall extend it to 30. अब ये कॉमन सेंस से हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये पावर क्या है इस एक्ट के अंदर, कि जो डेट किसी प्रोसीडिंग को, किसी नोटिस को, इंटीमेशन को, और जो इस पीरियड के अंदर फॉल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो उसकी डेट को बढ़ा दे। इसके अलावा इसमें कुछ पावर है और कुछ इसके अलावा कोई सरकार को? इट मे अमेंड एक्ट और क्लैरिफाई और इशू सच नोटिफिकेशन एज इट मे डीम फिट, कहीं है? अब इसमें क्या किया सरकार ने? अब पीछे वाली एक स्लाइड पे जाकर देखिए क्या किया सरकार। सरकार का कहना है, नोटिफिकेशन निकाला, द डिपार्टमेंट इस बात पे जाना चाह रहा है, इस नोटिफिकेशन पे, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, ये जो एक्सप्लेनेशन बनाई है, ये नोटिफिकेशन का पार्ट है, एक्ट का पार्ट नहीं है। For the removal of doubt, it is hereby clarified that for the purpose of issue of notice under section 148, at the time limit specified in section 149 or sanction under section 151 of the income tax, under this subclause, the provision of section 148 and 149 and 159, as the case may be, as they stood, as on 31st day of March, shall apply. अब ये आप टाइम लिमिट बढ़ा रहे हैं या आप पुराने प्रोविजन को अप्लीकेबल कर रहे हैं? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, it is here, I will read it out. From the removal of doubt, it has been clarified that for the purposes of issuance of notice under subsection 148, as per the time limit specified in section 149 or section 159, under this clause, the provision of section 148, 149, 150, as the case may be, as is to apply. मैं ये तो बात मान सकता हूं कि भाई वो ये कह दे कि भाई ये टाइम लिमिट जो है वो अप्लाई कर जाए, क्योंकि सरकार को यहां पावर क्या दी गई है? Where any time limit has been specified during the period from the so and so or such other date, that the central government may by notification specify for the completion or compliance of such action, completion of any proceeding etc. where so and so or such other date as central government. सिर्फ टाइम पीरियड एक्सटेंड करने की पावर है, टाइम पर एक्सटेंड करने की तो पूरी पावर है, कोई इसमें सेकंड थॉट नहीं है इसके बारे में। सवाल तो ये है कि ये टाइम पीरियड है या ये कह रहा है कि पुराने वाले प्रोविजन लगेंगे? ये कहां से आ जाएगा? ये कहीं से नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अगर ये नहीं आ रहा तो आपने जो मैंने पीछे वाले प्रोसीजर बताए 1 अप्रैल 2021 के बाद लगते हैं सारे, वो बिल्कुल ये जो टेबल है, ये इसका क्या होगा? और इसका क्या होगा जो 149 में मैंने कह दिया कि आप 3 साल के बाद नहीं कर सकते? इसका क्या होगा? सरकार को सिर्फ नोटिस प्रोसीडिंग पूरी करने का टाइम पीरियड एक्सटेंड करने की पावर है। आपने वो पुराने प्रोविजन के ऊपर तो पेंट कर दिया, अब नए प्रोविजन को आप उसको चिपका दिया उसके ऊपर, उस पोस्टर के ऊपर नीचे वाले पोस्टर को देखना चाह रहे हैं, कैसे देखेंगे? अगर उस पोस्टर के ऊपर पुराना नया पोस्टर नहीं चिपका होता तो उसकी लाइफ बढ़ा देते। ये तो सरकार ने लिख दिया ना कि 3 साल और 10 साल है। तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको पावर क्या दे रहा है? वो तो पावर सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ाने की दे रहा है। वो ये तो नहीं कह सकता कि भाई आप 3 की जगह 6 साल खोल लेना।
ये कहां से लाएंगे? यही सारा क्रक्स आज की डेट में लड़ाई का मुद्दा बना हुआ है। अब आपके सामने इसके हिसाब से 2-3 इशू आ रहे हैं। अब अगर अब आपकी कंट्रोवर्सी पे आ जाऊं मैं, तो 31 मार्च 2012 तो पहले ही बंद था, उसमें तो खतरा था ही नहीं। मैं 12 ईयर बाद चला, असेसमेंट छोड़ के 12-13 मान लिया है। 31 मार्च 2021 तक पूरा खुला हुआ था। नया एक्ट नहीं आता तो 30 जून 21 तक खुला हुआ था, कोई इशू नहीं था। ये उसकी टाइम पीरियड बढ़ा लेते और नया प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते तो शायद सरकार 13-14, 14-15 में भी बच जाती। 13-14-15 में नए प्रोसीजर के हिसाब से। हाँ, अगर नहीं, हाँ, अगर ये नए प्रोसीजर अगर वो कर लेते, टाइम पीरियड बढ़ा के नया प्रोसीजर अडॉप्ट करके ले जाते, तो शायद 13-14, 14-15 में शायद सरकार बच जाती। अब आज की डेट में जून 21 के बाद तो कोई एक्सटेंशन नहीं है 13-14, 14-15 की। बिल्कुल 15-16, 16-17 की भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। इसमें एक सवाल और आ रहा है, जो नोटिफिकेशन में पावर है वो उसकी डेट बढ़ाने की है जिसकी एक्सपायरी 1/4/21 को हो रही है। और एक्सपायरी किसकी हो रही थी? 13-14, 14-15 की। 15-16 की तो एक्सपायरी भी उसकी भी नहीं हो रही थी। उसकी कहाँ है नोटिफिकेशन डेट बढ़ाने की? 16-17 की भी नहीं और 17-18 की भी नहीं। अब जितने भी ये केसेज हैं रिट में जा रहे हैं और हाईकोर्ट एक ही सवाल पूछ रही है बार बार कि भाई ये डेट आपने करिए, आप 148 का प्रोसीजर का क्या करेंगे? सरकार का कहना है कि हमने तो और ये प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होता, हमारे पास पीरियड एक्सटेंडेड है। और एक मजे की बात और होगी कि अब 30 जून 21 निकल गई, अब फर्दर एक्सटेंशन तो है नहीं। तो अगर ये ऑर्डर क्वैश हो जाते हैं तो सरकार को इनको दोबारा खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नया स्टैट्यूट आ गया रिकॉर्ड पे। नए में एक अच्छी चीज और हो गई, 50 लाख से नीचे तो 17-18 खुल नहीं सकता, और 17-18 से पहले वाले केस को खोलने के लिए 50 लाख से ज्यादा लगाएंगे तो आपको 4 एलिगेशन ढूंढने पड़ेंगे कि भाई आपकी एसेट्स रिप्रेजेंट हो रही है लैंड बिल्डिंग के इसके बारे में। तो जितने वो केसेज है जिसमें लिखा है डिडक्शन गलत क्लेम कर ली, या जिसने लिखा कि आपका ये एक्सपेंडिचर अलाउेबल नहीं था, या ये बोगस था, या फिर आप बाहर घूमने गए थे वो खर्चा आपका कहीं नजर नहीं आ रहा, आपने कहां से किया था, वो तो नहीं खुल सकेंगे। और शेयर कैपिटल का भी नहीं खुलेगा सर? शेयर कैपिटल के बारे में देखो, सरकार तो बेईमानी करे बिना मानेगी नहीं इस बारे में। देखो सरकार तो लड़ाई लड़ेगी। देखो देखो ये तो जो रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स है इसके बारे में तो चैलेंज आएगा। वही मेरा पॉइंट था सर, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट है 10 साल के लिए। एक बात मान लीजिए, रेवेन्यू ऑफिसर ही विल हैव टू थिंक फ्रॉम द रेवेन्यू पर्सपेक्टिव, वो तो अपने एंगल से इसमें लगेगा। तो क्योंकि वो कहेगा भाई ये शेयर कैपिटल है और ये पैसा कैश का था, रिप्रेजेंटेड बाय एसेट, और आज की डेट में वो पैसा कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा और आपने लेके खराब कर दी तो शायद बच जाएंगे। फिर जितने भी आपने बोगस एंट्री का जो परचेज सेल का काम किया वो 50 लाख में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि जो खा लिया वो बच जाएगा, जिसने रोक लिया वो बच जाएगा। रोक लिया भी बच जाएगा लेकिन वो डायरेक्ट नेक्सस नहीं होगा। तो भाई सरकार ने 4 एग्जांपल दिए हैं, लैंड बिल्डिंग, शेयर सिक्योरिटीज, लोन एडवांसेस, बैंक बैलेंस। तो कैश इन हैंड में मांग लो, कैश ही मिल गया। तो पहले तो सरकार ने एक छूट कर दी कि 50 लाख तक की तो हर साल की छूट है। तो अब सर्च के केस में, क्योंकि सर्च में भी ये प्रोसीजर लगेगा, और सर्च में एक और इंटरेस्टिंग है, 153A भी खत्म, 153C भी खत्म। 1/4/21 के बाद जो सर्च है, पुराने केसेस चलते रहेंगे सर्च के अंदर। उन्होंने वहां प्रोटेक्शन कर दिए पुराने केसेस, तो ओल्ड प्रोसीजर लगे रहेगा। तो सर्च के अंदर भी आज की डेट में अगर 3 साल से पुराने वाले केसेस में वो 25, 30, 40, 50 लाख रुपए की हेराफेरी निकलती है ईयर वाइज, तो एक एसएससी 10 साल में 3.5 करोड़ रुपए तक की 50 लाख से नीचे फिगर रखे तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो हर लोकर में 40 लाख रुपए मिले और पता लगा वो लोकर उस एक 6 साल तक ऑपरेट नहीं हुआ, एक 7 साल तक ऑपरेट नहीं हुआ, एक 8 साल तक नहीं हुआ, एक 9 साल तक नहीं हुआ, तो उसके केस में तो एडिशन उस साल में आएगी। सर्च की असेसमेंट
जो 3 साल की है उसमें भी बड़ा भारी चैलेंज है, जो मेरी अगली स्लाइड में आ रहा है। आज की डेट में अगर ये मान के चलो एक सर्च हो गई 25 जुलाई को, इनका कहना हम 3 साल के केस खोल देंगे उसके। 3 साल के तो ऑलरेडी खुले पड़े हैं उसके। 19-20 का स्क्रूटनी का नोटिस चल रहा है, तो सितंबर तक टाइम पार होगा। 20-21 का 143(2) आया रखा हुआ है टेबल पे। 21-22 की रिटर्न ही नहीं गई अभी तक, जाएगी तो खोलेंगे। तो ये खोलेंगे कौन सी को असेसमेंट? और लॉ बहुत क्लियर है, एक टाइम में 2 असेसमेंट हो नहीं सकती कि भाई आप एक असेसमेंट चल रही है और वो दूसरी असेसमेंट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सरकार को चैलेंज आएगा भाई, ये 3 साल के पीरियड का जो रखा है ये रीअसेसमेंट कैसे करेंगे। जिसमें 143(2) नहीं दिया वो तो मान लेंगे, और कुछ जजमेंट ये भी है कि 143(2) अगर पीरियड बचा हुआ तो उसका 148 नहीं हो सकता, आप उसी को करेंगे। एक एक्ट में पहले प्रोविजन होता था कि अगर सर्च के अंदर कोई मटेरियल मिल गया, कैश वैश मिल गया उस साल का, तो इट शैल बी डीम्ड टू बी कंसीडर्ड इनकम। अब वो प्रोविजन कैसे लगेगा मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि 271AB की पेनल्टी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगी। स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि वो असेसमेंट 153A में नहीं हो रही, 153C में नहीं हो रही, वो असेसमेंट आज की डेट में 143(3) में होगी। सपोज करो जिस एसएससी के यहाँ 25 जुलाई को कोई कैश मिल गया 1-2 करोड़ रुपए का, और 31 मार्च 2021 की बुक्स में कोई सेल वेल की फिगर मिल गई, और सितंबर की रिटर्न भरते समय उसने 21-22 में वो इनकम दिखा दी, और अगले साल की इनकम में वो इनकम दिखा दी, तो उसकी असेसमेंट तो 147 में ही करोगे अब आप, ये 33 में, 143 में और तो कोई प्रोविजन बचा ही नहीं, और ये ओरिजिनल रिटर्न बन गई, कोई रॉन्ग डिक्लेरेशन है नहीं। तो जब तक आप डीमिंग फिक्शन क्रिएट नहीं करेंगे कि दिस विल रिप्रेजेंट अ कंसील्ड इनकम, जैसे पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी लगाएंगे कैसे? आज की डेट में 271AA है जो सर्च के बारे में बातें करता है, डिक्लेरेशन के बारे में करता है, वहां पे भी 153A सेक्शन का जिक्र किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये सरकार को चैलेंज आएगा कि जब उसने कहीं रॉन्ग डिक्लेरेशन भरा ही नहीं है और डीमिंग फिक्शन आपके पास है नहीं कि दैट विल रिप्रेजेंट ए कंसील्ड इनकम, तो ये सरकार को इसके बारे में बड़ा भारी आएगा। These will be the challenges which the government has to face। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये अमेंडमेंट की गई हैं तो बाकी वाले अमेंडमेंट पे शायद ध्यान देना उतना जरूरी नहीं समझा जितना जरूरी था। अब बहुत सारे सवाल एक ये भी मन में आ रहे होंगे आपके कि भाई चलो हाई कोर्ट से रेट पिटीशन में क्वैश हो गया और या सरकार कोई अमेंडमेंट लेके आएगी, जैसे कभी कभी अखबार में चर्चा आती रहती है कि सरकार अमेंडमेंट लेके आ सकती है और सरकार के पास पूरी ताकत होती है, जो भी चाहे सरकार अमेंडमेंट करना चाहे तो कर ही सकती है, उसका क्या होगा? उसके बारे में 2 प्रिंसिपल बहुत क्लियर है। एक तो ये प्रिंसिपल बहुत क्लियर है कि जो अमेंडमेंट आएगी वो किस डेट पे इफेक्टिव होगी, और दूसरा ये है कि आपने नए कानून में 3 साल का प्रोविजन रखा हुआ है, और ये जिस 1 अप्रैल 2021 से और जिस डेट तक का वो अमेंडमेंट आती नहीं है तब तक के पीरियड में ये प्रोविजन वही लगेगा, तो पुराना प्रोविजन नहीं, नया प्रोविजन नहीं लग सकता। जो केसेस आज की डेट में इस स्कीम के अंदर नए एक्ट के अंदर टाइम बार हो गए, वो असेसमेंट ईयर आप नए अमेंडमेंट से नहीं खोल सकते। आपने जैसे देखा होगा, मैं ये स्लाइड बता रहा था जो जिसमें 6 साल का प्रोविजन वाला था कि नहीं खोलेंगे, ये no notice shall be issued which could not have been reopened under the old. This is a time tested judgment of the Supreme Court where they say कि आप अमेंडमेंट करके पीरियड एक्सटेंड नहीं कर सकते, और उसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि जिस डेट को आप अमेंडमेंट करते हैं उस डेट को अगर वो केस खुल सकता था पुराने प्रोविजन के अंडर, उसका पीरियड तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उस डेट को वो केस टाइम बार हो गया तो उसका पीरियड आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। और क्रूड लैंग्वेज में समझना हो तो वो डॉक्टर वाली भाषा है
पेशेंट कितना बीमार हो डॉक्टर पे ले जाओ, डॉक्टर उसकी लाइफ बढ़ा सकता है, उसे अलाइव रख सकता है, 10 साल 20 साल 50 साल और रख सकता है। लेकिन पेशेंट को लेके जाओ वो विच इज डेड ऑन दैट डे, डॉक्टर कुछ भी कोशिश करे उसकी लाइफ नहीं बढ़ा सकता। सेम अप्लाइज टू द टैक्सेशन लॉ। अगर वो लिमिटेशन उस डेट को एक्सपायर हो गई जिस डेट को अमेंडमेंट आई है तो नहीं है। और आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 सारे टाइम पर आप उसके अंदर अमेंडमेंट करके किसी भी तरह से नई लाइफ नहीं डाल पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है सरकार उसकी लाइफ पीरियड को एक्सटेंड कर पाए। दिस इज देयर आर टाइम टेस्टेड जजमेंट ऑन दैट इश्यूज। और इसके बाद ये बहुत सारी मैंने सर्च के कुछ मैटर हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो उसमें मैंने वो लगाया हुआ है थोड़ा सा। सर्च के केसेस में कि अब मैंने कहा कि जो टाइम पीरियड है वो 3 साल और 10 साल का हो गया सर्च वाले केसेस में भी। और काबुल चावला को सरकार ने मान लिया, क्योंकि काबुल चावला में कहा था ना बिना इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के हम कोई एडिशन नहीं करेंगे। तो आज की डेट में भी सर्च वाले केसेस में असेसिंग ऑफिसर को जब वो 3 साल से बियॉन्ड जाने लगेगा तो उसको मटेरियल लिखना पड़ेगा कि हाँ क्यों 50 लाख से ज्यादा की एसेट मिली है जो दी है। अगर वो नहीं मिली तो वो साल को वो नहीं छेड़ सकते। 3 साल ऑटोमेटिकली वैसे ही आज की डेट में सर्च में खुले होते हैं। एक सवाल और आएगा कि क्या आप अपना नया क्लेम कर सकते हैं सर्च वाले केसेस में। ये एक बहुत मुश्किल जवाब होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सर्च के पीरियड में आपकी रेगुलर असेसमेंट भी चल रही होती है। आज की डेट में सपोज करो जिसकी 18-19 की असेसमेंट चल रही है और सर्च हो जाए और उसके वो एओ दोबारा असेसमेंट करने बैठे तो वो नहीं कह सकता कि मेरा एटीआई का क्लेम मिलना चाहिए या मेरा कोई और डिडक्शन मिलती है जो मैं भूल गया दे दी जाए। ये अपना आप में एक नया सवाल आएगा। पेनल्टी वाला मैंने आपको कहा था कि 271AA की पेनल्टी आज की डेट में फिट इन नहीं होती है। और एक अशोक चड्डा का जजमेंट था कि 143(2) इज नॉट रिक्वायर्ड इन सर्च केस, वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सर्च केस में 143(2) देना पड़ेगा, क्योंकि 148 में रिक्वायरमेंट है 143(2) को नोटिस। ये मेरे कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे अगर वो 30 लाख 20 लाख पर मिलते हैं किसी साल के तो फिर वो सर्च वाले असेसमेंट में अब से वो छेड़ नहीं पाएंगे इस बारे में। बहुत सारे केसेस में होता है ना वो छोटी छोटी एडिशन कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। अबेटमेंट हो नहीं पाएगी, अब पैरेलल असेसमेंट दो हो नहीं सकती। काबुल चावला फर्म हो गया है। न्यू क्लेम कैन बी मेड और नॉट, दैट विल बी चैलेंज। पेनल्टी 270(1) की ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। 143(2) मैंडेटरी इशू करना होगा। जो आपने सवाल पूछा था सुनील जी कि वो क्या एक बार बाकी इनकम को असेस कर सकता है, उसकी लेजिस्लेटिव मैंडेट है आज की। वो बिल्कुल क्लियर प्रोविजन कर दिया कि एक बार 148 दे दिया तो उसे दोबारा प्रोसीजर 148A का फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत क्लियरिटी उन्होंने कर दी है कि उसके बारे में वो कर सकता है। फेसलेस की मेरे ख्याल आज की जरूरत में नहीं है। अब आपके क्वेश्चन आंसर आई कैन टेक अप, आपके जो भी क्वेश्चन है ना आई कैन टेक अप ऑन दैट क्वेश्चन। हाँ जी अग्रवाल साहब। हाँ जी सुनील जी बताएं, कोई चैट बॉक्स में तो अभी कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से पार्टिसिपेंट के सब वो खोल दीजिए ऑडियो और वीडियो। हाँ, और उनको कई जो क्वेश्चन है लेट देम एक्सप्रेस देयर फीलिंग कि क्या उनके मन में सवाल है जो आ रहे हैं। पीके अग्रवाल जी हैं, उनको मैंने अलाउ कर दिया है। अग्रवाल जी बोले, आप अनम्यूट करके चेहरा जरूर दिखा दें, पहचान तो लें तो कौन से दोस्त बोल रहे हैं। और मुश्किल सवाल नहीं पूछना, ये ध्यान रखना भैया। अग्रवाल साहब अनम्यूट नहीं किया पीके अग्रवाल जी, आप सबको कर दो ना एक बार, बहुत ज्यादा वो नहीं है, मैंने देखा है। हाँ। सर वेबिनार में चले। हाँ जी सर ये बताइए कि जैसे हमारे यहाँ नोटिस आया था 24 जून को आया था, तो उसका हमने सर नोटिस को जो 148 का जो चल रहा है पूरा राइट अप देके चेंज कर दिया है उसको वैलिडिटी को, उसका हमने रिटर्न नहीं भरा है अभी, और फिर उसको हमने उसमें भी डाल दिया है अपना कंप्लेंट जो होता है इनका उसमें भी डाल दिया है। तो क्या हमने रिटर्न तो भरी नहीं है उसकी, तो क्या होगा फाइनली इसका? 143(3) उनका हुआ है। भाई देखो, आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है हर एक के पास।
जब 148 का नोटिस आता है तो ये तो मान के चलना चाहिए असेसिंग ऑफिसर ने कोई रीजन तो रिकॉर्ड कर ही रखे हैं आपके, क्योंकि पुराना प्रोसीजर अडॉप्ट किया है और अप्रूवल ले रखी है। और ये भी मान के चलिए कि अगर आपने उसको रोका नहीं तो उसने तो वो एडिशन करनी ही करनी है। तीसरी बात, क्लाइंट को ये पता है कि किस चीज का 148 है, ये उसने क्या कर रखा है गड़बड़ जो उसकी नोटिस आ रही है। अब इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपको उसको रोकने के लिए टेक्निकली आपको कहीं ना कहीं से रोकना, ब्लॉक करना पड़ेगा। आप उसे नहीं रोकते हैं, वो असेसमेंट करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, आपसे डिमांड रिलीज करने की कोशिश करेगा, आपको सेट अपील पे जाएंगे, सेट अपील आपको रिलीफ नहीं देगा लीगल ग्राउंड पे, तो मेरिट पे अगर आपका केस 2-2-4 का तो शायद छोड़ दे, या ये भी छोड़ दे, ट्रिब्यूनल जाएंगे। नाउ आपके पास इसको ब्लॉक करने के लिए दो रास्ते हैं। जैसे एक, आज की डेट में ये क्लियर है कि भाई ये नोटिस 148 के इलीगल है क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो आप इसको यहीं रोक लो। ये तो कर दिया है सर, हमने अप्लाई कर दिया है और ग्रीवेंस में भी डाल दिया है उसकी। ग्रीवेंस में नहीं होगा, ग्रीवेंस में नहीं हो सकता, तो हाई कोर्ट से रोकना पड़ेगा। सर जो इनकी मेल आई थी उसी पे हमने रिप्लाई कर दिया था, क्योंकि पोर्टल बंद था उस टाइम। अब पोर्टल पे सर वो रिटर्न ही मांगता है और उसके अलावा एक बात सुनिए, ट्रेन का काम है, दिल्ली से चली बंबई जाएगी, आप उसको रास्ते में कुछ और दोगे वो नहीं सुनेगा किसी हालत में। तो आप सोचो कि मैंने पोर्टल पे डाल दिया और वो आपकी बात सुन के बंद कर लेगा, वो नहीं करने वाला। असेसिंग ऑफिसर की जो ड्यूटी बाउंड है कि उन्हें रीजन रिकॉर्ड कर दिए हैं, वो तो आपको जवाब लेके, चिट्ठी लेके और आपकी असेसमेंट करके, आपकी एडिशन करके आपके हाथ में भेजेगा। देखो हमारा सबका एक्सपीरियंस है, जिसको 148 के नोटिस आए हैं, लगभग 98-99% केसेस में असेसमेंट एज इट इज रिपीट होती है, ऐड होकर आती है। तो सर रिटर्न भर देना चाहिए था फिर। नहीं, रिटर्न भरो नहीं भरो, लेकिन आपका कौन से साल का नोटिस है? 2014-15। तो वो तो टाइम बार है आपको जून में फिर, या बट ये सर उसी ग्राउंड पे जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना कि 30 जून तक वो वैलिड है कि नहीं, दो लॉ एक साथ चल रहे हैं लाइक दैट, वो पूरा वैलिडिटी ऑफ नोटिस इशूड को चैलेंज किया है। वो ये तो कह रहा है वैलिड है, आप कह रहे हो ना इनवैलिड है, हम कह रहे हैं ना इनवैलिड है। या हम कह रहे हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, तो रिटी लगानी, वो तो रिटी लगानी पड़ेगी ना फिर। तो अब क्या वेस्ट कोर्स होगा हमारे लिए सर? अगर जैसे हम 143(3) स्पीकिंग ऑर्डर है, सब कुछ हो चुका है उनका, अभी नया क्या वो पता नहीं है, क्योंकि हमने रिटर्न अभी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्लाइंट को ये तो पता होगा कि 148 क्यों आया है ये? सर क्लाइंट को जो होना था वो 143(3) में हो गया था सारा कुछ। अब एडिशन हुई है, वो एडिशन नहीं सर, हमने मतलब जस्टिफाई कर दिया था उसको, उससे बात नहीं बनती ना। और दे आर सेटिस्फाइड विद आवर रिप्लाई एंड उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन खुद ही कर लिया था, वो सब कुछ सेटिस्फैक्टरीली फाइल पे है। स्टिल दे आर इशूड अगेन दिस नोटिस। तो वो ग्राउंड तो तभी पता लगेगा अगर हम उसका रिप्लाई करते हैं, रिटर्न उसका जो भी मांग रहा है, फिर रीजन टू बिलीव तभी आएगा। वो तो मैंने आपकी बात मान ली कि भाई अप्लाई देंगे, लेकिन असेसिंग ऑफिसर तो उसको दोबारा एडिशन करेगा ही करेगा। वो कहेगा पिछले वाले ने देखा नहीं है और ये नई इन्फॉर्मेशन आ गई है मेरे पास। आपके केस में कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी ना, है क्या केस आपके केस में? कोई शेयर कैपिटल ले रखी है या शेयर कैपिटल थी। और आपके केस में उस समय जब इन्होंने केस किया तो वो आपसे जवाब लेके बंद कर दिया? हमसे नहीं सर, उन्होंने खुद इंटरनली खुद पार्टी से वेरीफाई भी कर लिया था, उनके पास मान लिया, लेकिन उसके बाद ये जिससे कैपिटल थी उसका स्टेटमेंट नहीं आया होगा, अब उसके पास स्टेटमेंट आ गया होगा कि मैंने बोगस दे रखी है। ओके, अभी एग्जिस्ट तो करती नहीं है सर वो शेयर कैपिटल, अब एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है उसमें जो आई थी वहां से। हेलो, आई नहीं, एग्जिस्ट करी नहीं करी, 148 तो बनेगा है ना। या भाई ये तो मंथ एंट्री है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो सर अब ये हमने चैलेंज किया है इस तरीके से, तो क्या हमें रिटर्न भरना चाहिए? अब क्या करें? नहीं, रिटर्न भर दो, रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा, रिटर्न के बिना तो गुजारा ही नहीं है। ओके, रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपका 234A का मीटर कौन हो जाएगा 2% का? अब वो तो टाइम निकल गया 30 डेज। अब भर दो, अब भाई हर महीने का तो रनिंग मीटर है।
आप रिटर्न भर के आप रेट लगा दो ना, क्या दिक्कत है रेट लगाने में आपको? अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? अमाउंट तो सर 50 से ज्यादा ही होगा। नहीं 50 नहीं है भाई, कई बार ये होता है ना कि छोटा केस है, क्लाइंट कहता है यार कौन खर्चा करेगा, जब देखी जाएगी क्या डिमांड आएगी, लड़ लेंगे, वो अलग बात है। क्योंकि नहीं तो वो आपका 13-14 का केस है तो 50 लाख अगर उससे ज्यादा है तो उतने पैसे आपसे मांग लेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। और सर जैसे अभी मैंने पूछा भी था कि नोटिस मतलब 148 उन्होंने इशू किया और हमने रिटर्न फाइल कर दी, क्योंकि पोर्टल पे केवल रिटर्न को ही अलाउ करता है और कुछ अलाउ नहीं करता। तो ऑब्जेक्शन हमने मेल पे अकाउंट मतलब डिमांड किए हैं, तो क्या वो वैलिड है और उसके लिए फिर आगे एक्शन क्या लें? वैलिड वो भी है, मैंने एक ड्राफ्ट लेटर आपको सर्कुलेट किया था, आपको ध्यान हो? हाँ जी, आप रिटर्न फाइल करके वो ड्राफ्ट लेटर दे दो, रीजन आ जाए, और रीजन के बाद फिर ऑब्जेक्शन फाइल करो फॉर्मली। अच्छा, वो तो मेल भी कर सकते हैं ना, ड्राफ्ट लेटर जो आपका था वो तो मेल पे कर सकते हैं उनके। हाँ मेल पे भेज सकते हो, वो तो कर दिया पोर्टल पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं है तो वहाँ कर दो, वहाँ कर दो। तो सब पोर्टल पे रिटर्न भर के कंप्लाई कर दें फिर, और फिर बाद में इस जो आपका ये जो अंडर प्रोटेस्ट करके उस पर रिप्लाई में फिर बाद में डाल सर ये तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि क्योंकि इस समय प्रोसीडिंग को रुकवाना जरूरी है, तो फिर वो हाई कोर्ट में तो लॉक करना ही पड़ेगा ना, वो तो मानेगा नहीं ना। अभी जो कोर्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, स्टे आ रहे हैं, वो तो पर्टिकुलर एसएसजी पे एप्लीकेबल है ना, सभी पे तो एप्लीकेबल ना है ना, सभी हर एक को इंडिविजुअली लेने पड़ेगा, सभी को जाना पड़ेगा अगर स्टे लेना है तो सब कुछ करना है। ओके ओके। हाँ संजय गुप्ता जी, आप बताएं क्या कह रहे हैं, आपको मैंने अलाउ कर दिया है। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। एक मिनट होल्ड करेंगे ना। हाँ धर्मा जी, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। जन साहब अभी 1 मिनट के लिए होल्ड करके गए। क्लियर आ रही है आपकी आवाज? क्लियर आ रही है, ओके। हाँ फर्स्ट टाइम आई रेज द क्वेश्चन। यस 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 यस, फर्स्ट टाइम यू रेज द हैंड, आई अलाउ द योर क्वेश्चन। और वीडियो का भी मुझे आइडिया नहीं है, विदाउट वीडियो बात करते हैं। नहीं वीडियो चालू कर दो ना अपना, स्टॉप वीडियो पे वो कर दो। ठीक है, विदाउट वीडियो भी देखते हैं पहले। चलो पहले आवाज से बात कर लो, अरे कहीं ऐसा ना हो तो आवाज भी चली जाए। बहुत दिन हो गए देखे हुए, दिखा दो अपनी शक्ल। तो वीडियो में ये एक साइड में बटन होता होगा कोई यहाँ पे, म्यूट के बगल में होगा, म्यूट के बगल में, ओके। हाँ दो ऑप्शन आते हैं उधर लेफ्ट हैंड साइड पर, 2 ऑप्शन आते हैं। टॉप वीडियो पे लाइन आ रही होगी क्रॉस, उसको वो कर दे, अलाउ क्लिक कर दे उसको, उस पर क्लिक कर दो खाली बस। जैसे इसको अनम्यूट किया है, इसको वीडियो वाले पे क्लिक कर दो ना। मैं वही देख रहा हूँ, मैं वीडियो पे दिख रहा है, तो उसी के बराबर में आती है। ओके सॉरी सब, मैं वो मैसेज हाई कोर्ट से था कि अब नंबर आ गया था तो वो एडजोन करा है मैडम। अच्छा नंबर आपका चालू हो गया? हो गया था लेकिन एडजोन कर दिया, मैं नहीं था। एडजोन कर दिया, अच्छा। सर नमस्कार, संजय गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी संजय गुप्ता सर बताइए। सर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर हमारे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स 100-200 सबके होते ही हैं, उनकी मेल आईडी अपनी भी हो सकती है, उनकी मेल आईडी उनकी भी है, लेकिन वो देखते नहीं है। तो आज की डेट में 2 अगस्त को जितने भी 148, 142 कोई भी चीज है वो पोर्टल पे अपडेट हो चुकी है ना। अगर हम 1-to-1 क्लाइंट के पोर्टल में जाके उसके अंदर देखते हैं या नोटिस आया, या अभी भी डाउट है कि कुछ नोटिस अपलोड नहीं हुए, फिर ये क्या होता है ना, क्लाइंट को मेल आया 20 जून को, तो उसको तो बिल्कुल अभी भी नहीं पता, मुझे मालूम है कि उसको पता ही नहीं, अभी भी नहीं है, देखता ही नहीं है वो। तो हमें कैसे पता लगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव 500 क्लाइंट और नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, तो हाउ कैन आई जज कि किसको नोटिस आया किसको नहीं आया? भाई देखो, पुराने जमाने में घर के बाहर एक लेटर बॉक्स लगा होता था, ठीक है सर, और कोई कहे जी भाई मैंने 1 महीने से लेटर बॉक्स खोला नहीं तो मैं क्या करूं, मेरे को कैसे पता, मेरे को चिट्ठी आई नहीं है, तो कौन क्या सरकार कहेगी, डाकिया क्या कहेगा? सर उनका काम मैं कर देता हूँ अपने यहाँ पे। तो पोर्टल में अगर हम ओपन करते हैं तो आज की डेट में सर अपलोड हो चुका है ना सर एवरीथिंग, या अभी उसमें डाउट है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं डाउट नहीं है, आपको वहां पता लगता है ना कि पोर्टल पे कब डाला या ईमेल कब आई है, तो पता लगेगा आपको। सर वो आ तो जाएगा ना, लेकिन अभी जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि कुछ नोटिस जो मुझे 30 मार्च को आए हैं, 31 मार्च से पहले
वो अभी अपलोड नहीं हुए। ऐसा भी हो सकता है कि वो नोटिस तो आ गया बाय हैंड या जैसे मिल गया मेल पे, तो लेकिन अपलोड पोर्टल पे अपलोड नहीं है। पोर्टल पे अपलोड होने की जरूरत कहाँ, फिर आगे तो आपको नहीं, जैसे सर मैं किसी का पोर्टल ओपन करता हूँ तो मुझे 148 वहां नहीं दिखना चाहिए, जैसे अब एक्शन में आते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों सर वो मेल देखे ना, अगर किसी को 148 का मेल आया है तो पोर्टल अपडेट नहीं होता सर, एक्शन में जाके जब वो देखते हैं ऊपर। वो तो एक टेक्निकल इशू है, लेकिन नॉट लीगल इशू सर। लेकिन कोई पहले तो ऐसी साइट जो नहीं बनी है, जब से प्रॉब्लम आई है। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। सरकार का कहना है हम आपको एक डॉक्यूमेंट डिन लगा कर देंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा कर देंगे, और आपका हमारा कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। ओके। सरकार का ये कहना नहीं है कि फिजिकल नहीं होगा। आपको लेटर, लोगों को स्पीड पोस्ट से भी लेटर आए हैं, लोगों को ईमेल से भी आए, लोगों को पोर्टल पे भी आए हैं। तो सर एक डेट भी तो होती होगी ना कि पोर्टल पे एवरीथिंग इज अपडेटेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मे बी कि मुझे 148 आया हो मेल के थ्रू और मेरे इनकम टैक्स के पोर्टल पे 0 दिखा रहा हो, भी कोई एक्शन नहीं है, नो एक्शन। हाँ, हो सकता है सर। तो एक नॉर्मल चार्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, वो तो उल्टी प्रॉब्लम है। पोर्टल कौन चेक करता है रोज? ईमेल तो फिर भी लोग चेक करते हैं। सब मेल में कई लोग ईमेल में तो मेरी सारी आती है मेल, डाक कोई भी आ जाए। ठीक है। मैं हर रोज सुबह खुलते इनकम टैक्स वालों को याद करूं पोर्टल देखने के लिए। सर एक दिन तो नहीं कर सकते ना, 2 अगस्त को बैठे हम तो 100 क्लाइंट का अगर हम चेक करते हैं 100 वो तो देखो, वैसे तो देखो ये बात गलत है कि आप अपना पोर्टल पे कहीं वो लेट द क्लाइंट डू इट, दैट इज द आइडिया बेसिकली। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक में ये संभव नहीं है कि पोर्टल के लेट द क्लाइंट डू इट। ओके। एक क्वेश्चन है सर, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है। नोटिस अंडर सेक्शन 148 dispatched on 1st July 2021 as per speed post tracking, is it valid? खुद ही जवाब दे दिया उन्होंने, मेरे को जवाब देने की जरूरत कहाँ बची है? नहीं, वो पूछ रहे हैं is it valid? इसलिए मैं बता रहा हूँ, उनको बुलाओ ना, यहाँ आ क्यों नहीं रहे वो? ये उनको क्वेश्चन उसमें चैट बॉक्स में है। उनको चैट बॉक्स में तो ऐसा मतलब है ना प्रेजेंट, पूछो सुरेंद्र जी से, फिर पूछते हैं बर्फी कब खिलाएंगे। सुरेंद्र जी अपना रेज हैंड कर दे, मैं आपको अलाउ कर दूंगा अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात। सबको कर दो ना साहब, कोई बहुत ज्यादा थोड़ा सर नहीं हो रहे, सारे नहीं हो रहे सर। मैंने अभी पूछा है उनको, सारे नहीं होंगे, 1 by 1 ही होंगे। 1 by 1 कर दो सर। एक क्वेश्चन और है सर, अभी सुनिए। देखो जो एक मैंने कहा है कि हर एक को, जिसको भी 148 नोटिस इस क्लाइंट को आए हैं, 3 चीजें जरूर वेरीफाई कर लें कि जो 148 पे डेट और आइडेंटिफिकेशन डिन नंबर क्या लगा हुआ है, और उसके बाद वो आपके पास आया कैसे है। ईमेल से आया तो ईमेल पे टाइम होता है। हमारे लिए डेट वैलिड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेट है कि किस डेट को ये उन्हें आपको निकाला। वो बहुत सारे पे डेट डली हुई है 31 मार्च को, निकला 2 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को है। बहुत सारे पे 30 जून की डेट डली हुई है, ईमेल वो 12 बजे के बाद की रात की है। स्पीड पोस्ट जैसे ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई के सारे इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि डेट वो मानी जाएगी जिस डेट को एओ के हाथ से निकल गया। और एओ के हाथ से निकलने का मतलब है जब उसने ईमेल कर दी या आपको स्पीड पोस्ट करी है। सर्विस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपकी हो गई इसके बारे में, तो वो सारा देखें। सर्विस तो पहले इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी मैंने केस देखा परसों, मेरे पास एक केस ऐसा भी आया था जिसमें वो नोटिस की डेट 30 जून दे रहा है, 2 जुलाई को बता रहा है इसका डिन नंबर ये है। और जब, क्योंकि आज की डेट में जो डिन नंबर है वो कंटिन्यूअस है ऑल इंडिया में, उस डिन नंबर से भी ये पता लग जाता है कि ये किस डेट का नोटिस हो सकता है। यस सर। आप देखेंगे 1033 की सीरीज चल रही है, उसके बाद 982 आता है और उसके बाद 3 ही रहते हैं। 10 डिजिट का नंबर है डिन का, आप नोटिस खोल के देखिए। जो नोटिस 30 जून को इश्यू हुए हैं उसके ऊपर सीरीज है 1033, 937 और उसके बाद के नंबर 3 नंबर आ रहे हैं। 29 जून में वो 937 के बाद 923 आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो एओ किसी के लिए बैकडेट करना आसान काम नहीं है, क्योंकि दिन की सीरीज बिगड़ जाएगी, सीरियल ऑर्डर बिगड़ता है। तो बहुत सारे जो लोगों ने जो स्पीड पोस्ट वगैरह किए ना, वो इसीलिए किए कि चलो दिन तो क्रिएट नहीं हो रहा, इसको क्रिएट करके भेजो निकाल के बारे में। और 1 जुलाई वाला नोटिस तो सरकार किसी भी तरह से नहीं डिफेंड कर पाएगी। सुरेंद्र कुमार जी आप बोले, मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आपका जो क्वेरी थी। सर एक पॉइंट और, एक क्वेश्चन और है सर। अभी सुनील जी ने पूछा 148 में जो रिटर्न है वो विद इन 30 डेज सबमिट नहीं होती है किसी वजह से, नेक्स्ट मंथ होती है, तो इंटरेस्ट लगता है ऑलरेडी 234 का। भाई देखो,
234A में बहुत क्लियर है कि अगर आपकी रिटर्न लेट है तो आपको एक तो 234B का इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक आपकी लेट फाइलिंग का 1% पर मंथ का रिटर्न टैक्स ब्याज लगता है, और ये दोनों पे लगता है, ओरिजिनल रिटर्न पे भी और 148 वाली पे। सर लेकिन पोर्टल हमारी डेट के बाद एक्टिव हुआ है, जो रिटर्न भरने के लिए पोर्टल पे हम भाई वो तो आप लड़ाई लड़ोगे ना। अभी 2-3 दिन पहले ही चालू हुआ है। आई नो दैट दैट्स वो तो होगी ना। डिमांड बनेगी तो सर तब लेंगे ना, वो डिमांड बनेगी, डिमांड के ऊपर अगर केस में डिमांड बनेगी जैसे आप क्या सोच रहे हैं 148 में डिमांड नहीं बनेगी क्या? सर अभी रीजन अभी मांगा नहीं, तो वो एक सिंपल लेडी का केस है कि अरे मैं भैया 148 दिया, सिंपल कैसे केस हो गया? अब तो बड़े यार, अब सरकार वालों को कमजोर समझ रहे हो। नहीं ऐसा लगता नहीं सर, उसके रिटर्न देख के आप पता नहीं। अरे असेसिंग ऑफिसर है, रीजन लिखे हैं, प्रिंसिपल कमीशन ने अप्रूवल दी है उस रीजन के ऊपर। कैपिटल कोर्ट लेडी के केस में पेनी स्टॉक का कैपिटल गेन का प्रॉफिट नहीं है क्या उसके केस में? नो सर, नो पेनी स्टॉक, नो कैपिटल गेन। और फिर 148 कैसे आ गया? वो प्रॉपर्टी में भी उन्होंने प्रॉपर्टी ली है हस्बैंड के साथ, बस वो इशू है कि वो सोर्स कहां से, ये नहीं बस। ठीक है। तो सर 1 अगस्त को रिटर्न फाइल किया, 1 अगस्त को, 31 को नहीं हो पाई थी रात को, वो पोर्टल में अटक गया था, तो तब भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी चिंता क्यों करते? अच्छा 1 अगस्त को किया। सर जो मेल आती है, सर एक पॉइंट है सर बहुत जरूरी, सर मेल जो आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, स्कूटनी की मेल आती है, वो कोई स्पेसिफिक एक वो होती है ना मेल का, वो पोर्टल के नाम से स्टार्ट जो होता है, अगर हम मेल जो मेरी नंबर ऑफ मेल्स हैं तो आई कैन चेक माय मेल्स, और क्लाइंट को कह सकते हैं आप मेल चेक कर लो। देखो आई कैन आंसर, दीज आर ऑल टेक्निकल इशू लिंक्ड टू द पोर्टल ओनली, दैट डजंट अफेक्ट योर लीगलिटी इशू। ठीक, तो ये पोर्टल के तो इशू है ना, ये तो वही कंप्लायंस इशू है ना, भरने के जा रही है नहीं जा रही, वो सरकार का पोर्टल बेचारे का खराब हो रहा है, थोड़ी दिन में ठीक हो जाएगा, वो तो कंप्लायंस वहां से आ जाएगा। हाँ ठीक है बात। सुरेंद्र जी का हो गया, बाकी का देख लीजिए। संजय अग्रवाल साहब आप म्यूट हैं। अग्रवाल साहब, in case of company his return is now filed against notice under section 148, क्वेश्चन उनका पूरा नहीं है। in case of company his return is now filed against notice, इनका कहने का मतलब ये है कि अब 148 में हम की रिटर्न फाइल कर दें क्या? क्वेश्चन पूरा नहीं है सर इनका। करना तो पड़ेगा, हाँ कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा। श्याम जी आपका कोई क्वेरी? और अभी और क्या लगता है सर आपको? क्वेरी तो है नहीं अभी मेरे पास। सर आपको क्या लगता है सर, ये सब जो चल रहा है डिस्प्यूट इस पे नोटिस पे, आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या हो सकता है सर एसएससी के फेवर में, या गवर्नमेंट का स्टैंड आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर? आपका व्यू क्या है सर इसमें? सर जो क्या मतलब मैं समझा नहीं। ये जो 148 में एम्बिग्यूटी हो रही है ना 30 जून तक और 31 मार्च में टाइम बारिंग हो गए हैं, और उनको नहीं, अगर मेरा लेक्चर आपने सुना हो तो मेरा व्यू तो बहुत क्लियर, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था भाई, 31 मार्च से पहले के नोटिस सारे वैलिड हैं। 1 अप्रैल से लेके 30 जून के नोटिस पे सरकार लड़ाई लड़ रही है, और नोटिस इनवैलिड है सारे हमारे हिसाब से। सरकार का नया एक्ट है, मकान पुराना वाला टूट चुका, नया मकान बन गया, सीढ़ियां दूसरी हैं, वो सरकार कह रही है हम तो पुराने वाली सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? वो सर इसीलिए इनवैलिड है ना कि उन्होंने नया प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया। हाँ नेचुरली, अगर वो नया प्रोसीजर किसी भी केस में नोटिस में उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है तब तो वैलिड है ना। वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया ही नहीं किसी में, कर कैसे लेते हैं आपके बिना बताए? नहीं, मैं अपनी उसके लिए पूछ रहा हूँ, अगर किसी ने किसी भी नोटिस में कर लिया है पुराना वाला तब तो वैलिड है ना भाई। वैलिड नया प्रोसीजर अडॉप्ट करने में वो 3 साल की कंडीशन फिर हाथ में आ जाएगी। हाँ जी, अच्छा 3 साल की। हाँ 3 साल उसको कैसे ओवरकम करके जाएंगे? वो 50 लाख से ऊपर का असेट्स का दिखाना पड़ेगा, असेट्स है नहीं है। हाँ वो तो फिर 10 साल के लिए हो गया ना। भाई हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने आपको जो नोटिफिकेशन में पावर दी, गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने सरकार को, वो दी थी डेट एक्सटेंड करने की। आपको ये नहीं कहा था कि कौन सा प्रोसीजर पुराने वाला कर लेना, नया कर लेना, ये तो आपको उसमें कुछ कहा ही नहीं है। और आपने नया एक्ट, पार्लियामेंट ने नया एक्ट बना के 31 मार्च के आपके हाथ में दे दिया, एक नया प्रोसीजर बना के दे दिया, उसमें कह दिया 3 साल से ज्यादा नहीं खोलेंगे, 10 साल से नहीं खोलेंगे। आप 1 अप्रैल को आप टाइम पीरियड बढ़ा लेते हैं, लेकिन आप प्रोसीजर वो जो लिमिटेशन है वो यूज कर लेते उसके उस कानून को। तो वो 3 साल वाला प्रोविजन तो फिर किसी भी तरीके से एप्लीकेबल, क्योंकि 3 साल वाला तो अभी भी खोल सकते हैं नए प्रोविजन में। हाँ लेकिन 3 साल का तो दिक्कत है ही नहीं, 18-19 का केस क्या खोल के करेगी सरकार? तो अभी तो स्क्रूटनी चल रही है। तो ना फिर तो कुछ है बचा ही नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं फिर तो, सरकार के हाथ में।
नहीं ये तो नहीं कह सकते कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारा सोचना है कि भाई लेफ्ट हैंड मस्ट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। Yes, yes. वी आर सेइंग दैट इन मार्च यू आर इशूइंग ए न्यू एक्ट, पार्लियामेंट ने पास करके आपने नया प्रोसीजर लगाया, और साइमल्टेनियसली आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पुराने एक्ट के नोटिस दिए जा रहा हूँ आपके हाथ में। अब वो किसी ने ये देखो, जो पावर्स होती हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसे हम कहते हैं, वन कैन यूज इट ओनली टू द एक्सटेंट वन हैज बीन ऑथराइज्ड, उससे बियॉन्ड तो नहीं कर सकते ना। सर संजय गुप्ता, एक क्वेश्चन सर। एक सर आपने एक मैसेज दिया था मोबाइल पे कि 30 जून की रात को अगर कोई नोटिस नहीं आया है किसी भी तरीके से तो आराम से सो जाए, तो इट मीन सर वो पेनी स्टॉक में भी पेनी स्टॉक की वजह से कोई बच गया, या कोई कैपिटल गेन की 10-20 लाख की थी, ऐसा लगता था कि वो है, बैंक में एंट्री आई थी, तो वो इट मीन सर नहीं आया तो सर मैटर खत्म, 13-14 जो ही है ना। आज की डेट में तो 17-18 भी खत्म हो गया। तो सर मतलब सो जाए ना, मतलब जो आपने मैसेज में भी लिखा है सो भाई आपके पास मैसेज है इस समय? हाँ है सर उसमें लिखा है, आप दिखाओ जरा स्क्रीन पे। सर वो ना बड़ी डिस्कशन हुआ था सर आपके इस मैसेज को, मैंने बहुतों को दिया। मैं उसका मैं बताता हूँ ना। हाँ कि मैंने ये कहा था कि भाई 143(2) असेसमेंट ईयर 2021 की भी लास्ट डेट 30/6/21 थी। दैट्स राइट, ठीक है। जब वो मेरा मैसेज डिपार्टमेंट में गया तो वहां भी हलचल मच गई, बोले हमने तो सोचा था ये असेसमेंट ईयर वाइज 21-22 में लगेगा। यस हमने कहा ये तो ये लिमिटेशन का लॉ असेसमेंट ईयर से नहीं चलता, ये जिस डेट को लगता है उस डेट से लगता है। तो अगर आज को आपको 30/6/21 तक किसी को नोटिस नहीं आया असेसमेंट ईयर 2021 का, हाँ जी नहीं आया, और जिसको 148 का नोटिस नहीं आया, हाँ जी, तो उसका तो आज की डेट में 17-18 तक की तो चैन की नींद हो गई ना। ये बात ठीक है सर, यही बात एक सर स्मॉल प्रैक्टिस के भाई देखो बहुत सारे दोस्त हैं तो वो उनको तो रखता भी शांति, अब 20 साल बाद लग रहा है। लेकिन एक बात जरूर कह देना दोस्तों को, हाँ जी, कि उनका सोसाइटी में साहूकारों में नाम नहीं गिना जाएगा। अच्छा वो बात होती है सर। पुराने जमाने में मैट्रिमोनियल की जो अलायंसेस बात होती थी, तो जिसके वो कहते भाई रेड हो गई तो पैसे वाला तो है, सरकार पूछने आई है पैसे कितने हैं, ढूंढने आई है सरकार घर पे, कुछ तो है इसके पास। और इस मौसम में इतने 148 के नोटिस बचे, तो वो पैसे वाला कैसे हो गया जिसको 148 नहीं आया। ये बात सही है सर, ये बात भी होती है सर मार्केट में। अब की बात तो होलसेल में आया नोटिस। मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे क्रिकेट में स्कोर बनाए में तेरे कितने बने 32, कितने बने 36, 40, कोई का 50, एक के केस में 246, 2 सेंचुरी पार है। तो फिगर है मार्केट में, जस्ट पूछते हैं जनरल सर्कल में। और प्रोटेक्शन के केस में क्या है, तुम दो साल से कोई असेसमेंट नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रही थी, अब 148 की असेसमेंट घूमते रहो, कितनी होंगी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर, एक केस 15-16 असेसमेंट ईयर का है, और वो स्कूटनी में असेसमेंट कराया था 143(3) में, और वो स्कूटनी थी लिमिटेड स्कूटनी, और उसमें एक ही पॉइंट था जिसपे असेसमेंट खुला हुआ था कि वेरिफिकेशन ऑफ द लार्ज एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस हमने अदर एक्सपेंसेस में डाल दिए थे। वो पर्टिकुलर केस असेसमेंट उसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट की ऑडिट हुई, इंटरनल ऑडिट जो डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन थे बियॉन्ड दी जो लिमिटेड स्कूटनी था, उसके अलावा उसमें कई सारे पॉइंट निकाल दिए कि इसमें ये भी डिफरेंस है, ये भी है। तो उसने एक पॉइंट क्या किया, उसके उस एसएससी के 2 बिजनेस थे, मतलब 2 जगह कॉन्ट्रैक्ट थे, एक ए प्लेस पे एक बी प्लेस पे। ए प्लेस पे तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, बी प्लेस पे उसका आ रहा था नुकसान। तो जहां पे प्रॉफिट आ रहा था उसका सेम जीपी रेशियो उसने अप्लाई करके दूसरे वाले प्रोजेक्ट में डाल दिया एज ए ऑडिट ऑब्जेक्शन। तो अब क्या हुआ, ये ऑडिट ऑब्जेक्शन जो हुआ, ठीक है ना, उसके बाद मैटर वहीं शांत हो गया। उसके बाद क्या है, पता चला कि उसका नोटिस आ गया 148 में। जो रीजन है वो रीजन मुझे मालूम है किस रीजन से आया हुआ है, हालांकि रीजन मैंने लिया नहीं कॉपी, लेकिन आई एम श्योर कि वो रीजन वही है 100%, क्योंकि ऑडिट ऑब्जेक्शन की मीमो मेरे पास है उसका। अब क्वेश्चन ये है कि जो नोटिस आया हुआ है 15-16 असेसमेंट ईयर का, जो लिमिटेड स्कूटनी में केस था, और अब 148 जो केस खुला हुआ है, क्योंकि हमने तो रिटर्न्स पूरी सही तरह से फाइल की हुई थी, और जो असेसमेंट में जो उसने इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो दी हुई थी सारी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो 148 के नोटिस में अब जो फ्रेश एप्लीकेशन है बेसिकली, कि आपने जीपी रेशियो वो लगा रहा है उसमें, ऑब्जेक्शन जो ऑडिट ऑब्जेक्शन है वो सेम जो कि ऑब्जेक्शन निकल के आएगी ग्राउंड ऑफ रीजन 148 का। तो 148 का रीजन इनवैलिड है,
ये 148 का रीजन ही नहीं बन सकता रीओपनिंग का। और सर यदि वो लिमिटेड में जो केस आया था उसके अलावा यदि कोई और भी वो जानना चाहे 148 में और भी वो पूछ रहा है उससे रिलेटेड, भाई वो एओ, देखो एओ की पावर को आप नहीं रोक सकते, उसको भाई अपने आप को एओ असेसिंग ऑफिसर आपसे मांग, देखिए कानून में वो नहीं मांग सकता। कानून में जो इशू है 148 के रीजन में उड़ जाना चाहिए, बिकॉज दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर रीओपनिंग। नहीं, अब क्वेश्चन ये है कि सर रीजन तो जितने असेसमेंट हमने आज से करा दिए, कभी भी वो ऑब्जेक्शन फाइल करते समय एओ तो मानता नहीं कभी भी। तभी तो अब मैं तो कह रहा फेसलेस वैसे हूँ अब तो वैसे ही नहीं मानेगा। तभी तो कह रहा हूँ हाई कोर्ट में रेट लगानी पड़ेगी। हाई कोर्ट में रेट लगानी चाहिए इसकी, मतलब ये तो क्या है, टाइम बार वाले जो 148 ए की वजह से भी उड़ेगा और जो रीजन भी दिए हैं उसने, तो रीजन भी इनवैलिड, 2 पॉइंट हो जाएंगे इसमें। ये तो एस्टिमेशन बेसिस पे उसने जीपी लिया ना। हाँ, अपना माइंड तो अप्लाई नहीं किया ना। नहीं माइंड, ये वो तो वही एक्चुअली क्या है, हुआ क्या सर, इस बार जो नोटिस इशू किए गए ना 148 में, वो एक्चुअली क्या है ना, उन्होंने बड़े हैपेजर्ड मैनर में कर दिए। जो भी ऑडिट में जो भी ऑब्जेक्शन आई सब उठा के, उन्हें टाइम मिला नहीं और सारे 148 खोल दिए उन्होंने, क्योंकि 148 की जो सेक्शन की जो मूल मंत्र है ना वही हटा दिया उन्होंने तो सबको नोटिस इशू कर दिए, जो होगा देखा जाएगा। क्यों कर दिए तो सोचो। अब क्यों कर दिया इसलिए श्याम सुंदर जी को बहुत दिन से काम, तो कुछ तो काम थे श्याम सुंदर जी को, क्लाइंट चल गया तो आया, मेरा नोटिस आया 148 का सर। तभी तो आज हम सब बैठे हैं। अब ये तो सोचो। नहीं सर, ये तो अच्छा काम है, वी आर हैप्पी फॉर दैट। नहीं अच्छा तो नहीं है, आई विल से क्लाइंट के साथ हमारे सेंटीमेंट होते हैं, हमदर्दी होती है, ऐसा नहीं है। कोई रेगुलर क्लाइंट है और कैपेसिटी टू पे भी क्लाइंट की बड़ी लिमिटेड होती है बेचारों की, कि भाई क्या करेगा, लिमिटेड है, कितनी देगा आपको। बट चैलेंज है, आई थिंक जैसे इसको चैलेंज करना चाहिए हाई कोर्ट में। तो सर इसकी कोई टाइम लिमिट है क्या? टाइम लिमिट का क्या इशू है? जिनके पास 148 आता है सर, उनकी पास कैपेसिटी तो उनकी होती है, तो उन्हीं के पास आता है 148 तो। नहीं, कई बार होता है, आई बिलीव भाई देखो होती है कैपेसिटी, लेकिन क्लाइंट भी सारे पैसे आपको नहीं देगा ना, ये भी तो मान के चलो ना। वो कह रहा बेचारा मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, आ रहा सारी आपको जितनी कमाई आपको दे दूं तो मुश्किल। नहीं सर, अननेसेसरी भी तो नहीं होना चाहिए। हाँ, आई नो दैट, क्लाइंट के साथ सेंटीमेंट होते हैं भाई, मानना पड़ेगा। अननेसेसरी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, रीजनेबल होगा। और सर ये इसका रिट पिटीशन का जैसे अपने को आइडिया नहीं है कि कभी करी नहीं है, तो क्या कोई टाइम लिमिट है क्या फाइल करने की? जैसे नहीं, रिट पिटीशन में कभी टाइम लिमिट नहीं होती। रिट पिटीशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शन, लेकिन ये जरूर होता है कि आपकी तरफ से लैप्स नजर नहीं आना चाहिए। आपकी तरफ से लैप्सेस कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि आप एकदम सो के जाग गए, तो आपको कोई ना कोई दिखाना पड़ेगा ना कि कारण वो बन जाता है ऐसा कि भाई मैंने लिखा था, मैंने चिट्ठी दी थी, ये दी थी, वो ऐसा नहीं थी, मैंने 2-4 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ा। अपील का जो टाइम होता है वो एक्ट में लिखा होता है, स्टैट्यूट में लिखा होता है, इसलिए तकलीफ आती है। रिट पिटीशन इज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कि मेरे फंडामेंटल राइट और मेरे को तंग किया जा रहा है, मेरे पास कोई साधन और नहीं है, इसलिए आप मेरी सुनवाई करो। हाई कोर्ट में 226 जो आर्टिकल है उसके अंदर लगती है। हेमंत नारंग जी, आप अपनी क्वेरी रेज करें, मैंने आपको अलाउ कर दिया। थैंक यू अग्रवाल साहब एंड गुड इवनिंग जैन साहब, हेमंत नारंग। Good evening. Sir, so are we saying that assessment year 13-14 148 issued on last 30th June is valid? Obviously subject to the procedures being followed or not. Valid कहाँ आ गया? 13-14 तो was expiring on what, 31st March 2020, which got extended. But the issue is that under the new law it cannot be beyond 3 years. एक तो ग्राउंड ये है, सेकेंडली एक दूसरा ग्राउंड है आपने 148A का प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया। प्रोसीजर तो सर मैं बोल ही रहा हूँ, आई मीन सब्जेक्ट टू द, आई जस्ट वांटेड टू इंक्वायर सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर बीइंग फॉलोड, so you are saying that 3 years thing also is not valid. 149 भी तो उड़ गया, अप्रूवल भी उड़ गई, 151 की अप्रूवल भी उड़ गई, प्रिंसिपल कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए थी, चीफ कमिश्नर की 10 साल का पीरियड में आएगी नए साल में, तो 50 लाख वाला चाहिए था अंडर प्रोटेस्ट रिटर्न 151 भाई, अप्रूवल भी तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी की चाहिए 3 से 7-10 साल के बीच में, और वहां लिखा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर इसमें इशू यही न्यू प्रोसीजर का बड़ा काफी इंटरेस्टिंग इशू है ये कि ये तो फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब ये लिटिगेटिव इशू है। वैसे जो नोटिस 30 जून तक आए हैं, तो
तो प्रोसीजर तो फॉलो होना ही चाहिए, नहीं कर रही है गवर्नमेंट। देखो हाई कोर्ट अदरवाइज अगर हाई कोर्ट कन्विंस नहीं हो तो हाई कोर्ट आपको कभी भी आपकी पिटीशन को एडमिट नहीं करेगी, पहले डे में उड़ा के बाहर फेंक देती है हाई कोर्ट। अगर उसमें नोटिस इश्यू हो गया आपको स्टे, मतलब हाई कोर्ट ने समझा है ना कि आपके केस में दम है। हाई कोर्ट मेरिट पर ले रही है केस को। हाई कोर्ट को पहले कन्विंस तो करना ही पड़ता है ना कि इस ग्राउंड पे आप किस ग्राउंड पे एडमिट करेंगे आप। ये तो नहीं है आपने अपील थोड़ी है आपने फाइल करी और आपकी सुनवाई हो जाएगी। सर जैसे कोर्ट्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रेसिडेंट्स को काउंट नहीं करेंगे अगर, अच्छा केस टू केस फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। नहीं वो हर एक के फैक्ट्स होते हैं ना अलग से अलग। सर जो मार्केट सिनेरियो है, जो रिट पिटीशंस फाइल करते हैं, मतलब मिनिमम जो अभी क्या है ना, असेसी का डर होता है बेसिकली प्रोफेशंस का भी, जो रिट है, रिट फाइल करेंगे तो एक तो कॉस्ट फैक्टर भी होता है रिट का। दूसरा फैक्टर क्या है कि एक ये भी होता है कि भाई रिट फाइल करेंगे, यदि रिट में हार गए तो कहीं उसका नेगेटिव नुकसान जीरो, नुकसान जीरो है। पैसे का नुकसान तो मान सकता हूँ लेकिन बाकी कोई नुकसान नहीं। अच्छा, बाकी कोई नुकसान नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो। तो रिट क्या सर, रिट में जाना क्या बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्या? नहीं नहीं बहुत कॉस्टली नहीं है। अच्छा, वो तो प्रोफेशनल की फीस ही है ना मैक्सिमम। हाँ कुछ नहीं, वो भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो बाद में हियरिंग वगैरह का भी रहता होगा ना इसमें, हियरिंग नहीं वो कंसोलिडेटेड कर लेते हैं आज की डेट में। अच्छा। मैं हर रोज 8 की डेट में 8-10 लीटर रोज सुबह लग रही है, लाइन लगी हुई है वहाँ तो बहुत सारी ना। तो ये तो सर फिजिकली होगा इसमें रेट, तो इसमें तो ऑनलाइन का तो है नहीं कुछ। अभी बराबर में हाईकोर्ट खुला हुआ था मेरे स्क्रीन पे सामने। आज की डेट में इसने पेंडेमिक ने इतना आराम कर दिया है कि एक टाइम में 4 मैटर होते हैं और एक दिन में जो पहले 1 हो सकता था 4 हो जाते हैं। अगर बॉम्बे मैटर लग गया तो सुबह फ्लाइट लेकर जाना पड़ेगा, बाकी दिल्ली तो एडजॉर्नमेंट होगी। बिल्कुल। किसी पर्सनल प्रोग्राम में कहीं बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी तो बाकी जगह एडजॉर्नमेंट लगेगी। हाँ जी। अब क्या होता है, अब 10:30 बजे हाईकोर्ट खोलते हो, 11 बजे हाईकोर्ट से आप फ्री, स्क्रीन चल रहा है, नंबर आया नहीं आया, ट्रिब्यूनल शुरू हो गया उधर से। ट्रिब्यूनल में 2 बेंच हैं, 6-8 बेंच काम करती हैं दिल्ली में, आपकी 2 जगह लगे, इधर लगे, आप नंबर देख रहे हो कितनी बजे नंबर आ गया नहीं आ गया। वहां से फिर बोर्ड वाले मीटिंग को कहा 3 बजे बोर्ड मीटिंग करेंगे, जयप्रकाश जी को कहा 4 बजे आपका प्रोग्राम कर दूंगा। अब आप काम करते हो, चांस की बात है आज हाईकोर्ट में, क्योंकि एक केस लंबा चला गया, 3 घंटे आर्गू कर रहा था, कोई पहले लगा हुआ था, नहीं तो वो नंबर नहीं आया, 5 बजे नंबर आया। ये तो अपॉर्चुनिटी होगी ना सर। नहीं दैट्स इजी दैट वे, बट चैलेंज भी है क्योंकि फिजिकल और उसका मुकाबला नहीं वर्चुअल से, क्योंकि जो वर्चुअल सरकार कह रही है वर्चुअल है, वो है नहीं इतना वर्चुअल। सर एक बार जो आपने अभी अपना जो एक वो दिया था ना, एक समरी सी बना के दी थी कि 3 साल 10 साल कौन कौन से नहीं होंगे, कौन कौन से अलाउ हो जाएंगे 148 में। मैंने आपको, मैं अभी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको भेज देता हूँ ना, मैं ये शेयर कर देता हूं ग्रुप। एक बार थोड़ा सा उसको ब्रीफ एक बार से और कर दें तो इस टाइम में हमारा सही भी रहेगा, टाइम भी है हमारे पास। सर इसमें जो रेट पिटीशन में टाइम कितना लगता है फाइल करने, जैसे हम फाइल करते हैं और कंक्लूजन तक कितना टाइम लगता है? तो टाइम तो लगेगा ना, पहले तो हियरिंग होगी, एडमिट होगा, फिर उसके स्टे लगेगा, और स्टे के बाद फिर वो उसके बाद वो सरकार को टाइम दिया जाएगा, भाई इनकी बातों का जवाब दो। ओके, वो काउंटर, इसको हम काउंटर कहते हैं, फिर हमारी तरफ से रिजल्ट आ जाएगा सरकार कहाँ गलत कह रही है। ओके ओके। तो 6 महीने से क्या साल भर लग जाता है? आपको क्या फर्क पड़ता है एसएससी को, वो तो रोक लिया ना एसएससी को, तो खड़ा कर दिया ना स्टेशन पे वहीं पे लाके। पहले दिन हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर देना है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हम नहीं कहेंगे। हाँ उसको तो चांस मिल ही गया ना जी पूरा। अब इसकी बात कर रहे थे ना। हाँ जी सर, हाँ जी। ये जो इंटरप्रिटेशन है, मैं इसलिए जा रहा था, अभी एक दो क्वेश्चन आए थे ना सर, उसमें उनको प्रॉब्लम आई कि वो 3 साल का कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं इसको वर्बली समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए स्लाइड तो आप समझेंगे ना, मैं ये ठीक है कि स्लाइड के लिए बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाया। देखो उसके लीगल इंटरव्यू, देखो सिंपल सी बात है कि आज की डेट में सेक्शन 149 में उन्होंने 2 चीजें लिख दी कि भाई 3 साल के बाद केस नहीं खुलेगा। पहला तो ये लिखा ये ना, ये प्रोविजन आया ना। हाँ जी।
As per substituted section 149, no notice shall be issued for the relevant assessment year if 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment. तो उसका सीधा सा वादन है कि 17-18 के 1/4/21 को 3 साल हो गए। असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी। If 3 years but not more than 10 years elapsed from the relevant year, unless the AO has in possession books of account or other document or evidence which reveal that income chargeable to tax represented in the form of asset which has escaped amount to or is likely to amount to INR 50 lakh or more for that year. For that year, year wise हो गया। तो ये दो साधन आपके, 2 हर्डल से एक को क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक, इसके बाद एक सवाल ये आ गया, ये एक क्लॉज सरकार ने इसके नीचे प्रोवाइजो डाल रखा है, जो मेन मुद्दा बना हुआ है। प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड फॉर एन असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग और ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2020। 1/4/21 से पहले का कोई हम केस, उससे पहले असेसमेंट ईयर का केस नहीं खोलेंगे इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इशूड एट दैट टाइम। अब नाउ एट दैट टाइम का एक इशू है कि भाई एट दैट टाइम का मतलब क्या है। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द, एक इंटरप्रिटेशन एट दैट टाइम का मतलब है जब अमेंडमेंट हुई, या एक होगा एट दैट टाइम जब नोटिस इशू किया गया। ये 2 इंटरप्रिटेशन हो गए। और यहाँ ये एट दैट, ये जो पुराना सेक्शन ये है वो 6 साल का है, ये लिखा हुआ है बी वाला। 6 साल तक के केस खोल सकते थे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर मैं पहले स्लाइड पे नहीं जाऊं तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर 1/4/21 को आप भूल जाओ, एक्सटेंशन वगैरह बात की बात है, जो डेट एक्सटेंडेड है वो तो एक अलग इशू है। आप 17-18 का केस नहीं खोल सकते। बिल्कुल। और आपके पास 13-14 और 14-15 का केस नहीं खोल सकते क्योंकि आपके 6 साल निकल गए। 6 साल निकल गए, काम खत्म हो गया ना। 6 साल के काम खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं, हम एक और बात कह रहे हैं, ये तो हो गई 21 की बात। अब आ जाओ, अगर ये नोटिस इशू करना है 2022 में, 2022 में आप 10 साल का नोटिस इशू करना चाह रहे हो 14-15 का। अगर ये प्रोवाइजो नहीं है तो आप कर सकते हैं। यस 10 साल का टाइम है मेरे पास। 14-15 तो 2022 में 10 साल हुए नहीं है। और इस प्रोवाइजो में ये पढ़ता हूं कि इस क्लास को पढ़ता हूं और ये मान के चलता हूं कि ये 6 साल का पीरियड लगेगा इसमें भी। तो 14-15 इशू नहीं हो सकता, और 15-16 भी इशू नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता ना 15-16 भी। बिल्कुल 15-16 भी निकल गया, 6 साल से ऊपर हो गया। लेकिन अगर एट दैट टाइम को मैं ये पढ़ूं, अगर आपकी बात को, ये मेरे इस इंटरप्रिटेशन की बात को मान लूं, तो किसी भी स्टेज पे 10 साल का नोटिस इश्यू नहीं हो पाएगा। 2023 में आप 16-17 का नहीं दे पाएंगे। यू एग्री? क्योंकि 6 साल की क्लास फिर आपको हंट करेगी। बिल्कुल। और 2024 में आप 17-18 का नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर मैं एट दैट टाइम को 1/4/21 मान लूं कि एट दैट टाइम में नहीं दे सकता था, तो अगले 2022 में मैं 15-16 का नोटिस इशू कर पाऊंगा। कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? यस। और ये नोटिस 23 में भी इशू कर पाऊंगा। फिर तो इशू कर ही सकते हैं। हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल 21 को 10 साल में आ गया ना। कंप्लीट हुए नहीं थे। इसीलिए ये टेबल बनाई गई, इस हिसाब को लगाने के लिए। अब पहले वाली बात तो छोड़ दो, 50 लाख रुपए वाली तो छोटी बात है, 50 लाख से नीचे वाली। अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो प्रोविजन है मेरी वाली एट दैट टाइम का मतलब नोटिस का टाइम है। अगर नोटिस के टाइम से जाऊं, अब ऊपर पहले 2 साल छोड़ दो, ऊपर वाले 15-16 पे आओ। 15-16 का रीओपनिंग पॉसिबल है 31/3/22 तक, इसके बाद पॉसिबल नहीं होगा। If at that time comes notice. Yes. लेकिन अगर नोटिस का टाइम नहीं है, अगर नोटिस का टाइम नहीं 21 मानो तो 26 तक खुल सकता है। हाँ बिल्कुल। इसी तरह 16-17 का 23 तक खुल सकता है
अगर एट द टाइम का, उसके बाद नहीं खुल पाएगा, और नहीं वो 27 तक खुल पाएगा। ये टेबल इस बात को इंडिकेट कर रही है। ये दो इंटरप्रिटेशन है। तो ये जो वर्ड एट दैट टाइम है, ये तंग कर रहा है कि एट दैट टाइम का मतलब क्या है। 1/4/21 माने ये लैंग्वेज की ये ड्राफ्टिंग की मेरे हिसाब से चैलेंज है। वैसे तो ये लिखा जाना चाहिए था एट द टाइम व्हेन द एक्ट इज बीइंग, व्हेन दिस प्रोविजन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। या लिख देते एट द टाइम एज ऑन 1 April 21। Yes. Then it would have been easy. If such notice could not have been issued at the time when this provision is being introduced or being enacted or 1 April 21। जनरल क्लॉज के हिसाब से वैसे क्या इसका मीनिंग निकलना चाहिए? नहीं, ये जनरल क्लॉज का में तो कोई है नहीं। इशू एट दैट टाइम का तो हमारा इंटरप्रिटेशन तो यही आएगा कि जब नोटिस इशू किया आपने। लेकिन सवाल यह है कि एट द टाइम का ये करने का मतलब है कि इमीडिएटली दूसरा इंटरप्रिटेशन भी करेगा, फिर तो ये प्रोविजन है रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंट हो गया। यही, हाँ, यही मेरा 10 साल तो कभी होंगे ही नहीं, किसी हालत में याद नहीं आएंगे। यही मेरा जो कंफ्यूजन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें तो अगले वाले बजट में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट में ठीक हो जाएंगे, कर देंगे वो। हाँ, बिल्कुल ले आएंगे। तो फिर ये वाली जो स्लाइड है ना, ये वाला इंटरप्रिटेशन है, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। तो लेकिन वो जो अब नोटिस आ चुके हैं उन पर तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा ना। अगर वो उसका जो आज की डेट में नोटिस की परवाह करने की जरूरत नहीं है ना। आज की डेट में तो वैसे हालत खराब है। हम तो कह रहे हैं सारे नोटिस आपके इनवैलिड है। 148 आपने फॉलो नहीं किया, ये नहीं किया, आप नए में फॉलो प्रोविजन कर नहीं पाएंगे आप। अगर वो अगले बजट में ये प्रोविजन ले आए और नया प्रोसीजर अडॉप्ट करके फिर वो खोल सकते हैं। कौन सा वाला? अगर वो बजट में ले आते हैं, चेंज करके ले आते हैं एट द टाइम का मीनिंग, और नया प्रोसीजर अडॉप्ट करके, फिर भी नहीं खोल पाएंगे वो। नहीं, हम कहेंगे आज की डेट में नहीं खोल सकते, तो आप कैसे खोलोगे आगे? 13-14 भाई आज की डेट में 148 के जितने नोटिस बाजार में है, मेरा मानना है 70 से 80% तो 13-14, 14-15 के हैं। 13-14, 14-15 के हैं। यस सर। वो तो नहीं ला पाएंगे ना। वो तो किसी भी इंटरप्रिटेशन में फेल हो रहे हैं। हाँ, दोनों में फेल हो रहे हैं वो सर। वो तो यहाँ दोनों में फेल हो रहे हैं। हाँ, वो तो एट दैट टाइम को 1/4/21 मान लो आप, तो भी फेल हो जाएगा। तो बजट में चेंज करके वो क्या पावर ले लेंगे अपने पास? एट दैट टाइम का मतलब ये है कि जो मैंने जो दूसरी स्लाइड है ना, आगे वाले साल के 10 साल की, वो 10 साल का क्लास तो ओपन कर देंगे ना वो अगले सालों के। तो इन एनी केस 14-15 नहीं हो पाएगा। हाँ, 14-15 नहीं कर पाएंगे। 15-16 भी जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट 15-16 ऑनवर्ड्स तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अमेंडमेंट जो आएगी वो फाइनेंस बिल 2022 में आएगी। इस टाइप की अमेंडमेंट जाएगी। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर बंद कर लें पूरे। There is no question, other people are there. Sir, 10-year notice can be given if annual escape income अभी एक आ गया। If sir 10-year notice can be given if annual income is more than 50 lakh or accounted income asset is 50 lakh or more. नहीं, मैंने बताया तो है कि 10 साल तक के नोटिस दे सकते हैं। पहली बात तो 14-15 से पहले के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो 6 साल की क्लास वहां उन्होंने अटका ली है। उसके बाद के साल में भी सरकार को ये हर्डल क्रॉस करनी पड़ेगी कि 50 लाख रुपए की इनकम आपकी शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट व्हिच विल इंक्लूड बैंक बैलेंस। अगर बाकी चीजें तो नहीं कर पाएंगे। जो स्पेसिफाइड एसेट्स है उसी में ही हो गई, तभी कर पाएंगे। हाँ जी श्याम जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? अभी हमारे पास टाइम तो है सर। थोड़ा सा एक हाईलाइट करते हैं जो 115 बीबीए जो सेक्शन है, जो कि एक्चुअली जो 148 के लिए भी सर जो भी मैक्सिमम जो टैक्स का जो रेट है, तो उसको मतलब किस तरह से मतलब डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट किया जाए सो दैट वो 115 बीबीए सेक्शन ना इम्पोज हो। सुरेंद्र जी का जरा म्यूट कर देंगे, सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी कैसे आवाज आ रही है? कर दे। देखिए क्या है कि 115 बीबी का सिंपल सी परिभाषा है कि सेक्शन 68, 69 ए लगता है तो लगता है।
अगर आप ये साबित कर सकें कि ये बिजनेस से आ रहा है तो वो नहीं लग पाएगा। तो हम जब कई बार सरेंडर करते हैं सर्वे में या सर्च में लिख देते हैं कैश मिला, मेरी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, बता नहीं पा रहा, दैट इज नॉट द आइडिया। अभी आपको अगर ऐसा करें तो आपको बताना चाहिए कि मैंने ये सेल परचेज की थी, या ये मेरी कमीशन आई थी, ये आई थी, यहाँ आई थी, और इससे मुझे ये पैसे मिले हैं, इसलिए मैं इसको ये इनकम को डिक्लेयर कर रहा हूँ। फिर आपके एडिशन 68, 69 में नहीं होगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी तो 30% के स्लैब में आ जाएगा। बट सर डिमोनेटाइजेशन वाले पीरियड में सभी की 68, 69 में किया उन्होंने भाई इसीलिए इनकम है। नहीं, वो एक अलग इशू है। आप मानते नहीं है ना, आप तो कह रहे हैं ना कि ये कैश की, वो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन बोगस है, आपका अनअकाउंटेड कैश है, और उसके बारे में भी एक लड़ाई होगी। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोर्ट की जजमेंट है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा मिला है तो दैट हैज टू टेक ए कलर फ्रॉम द सोर्स ऑफ योर इनकम। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिमोनेटाइजेशन का। आप बोले सुनील जी। हाँ, वही आपके ही फर्दरेंस में ही था कि पहले यही लोगों का पॉइंट था कि हमने तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए सेल दिखा लिया है लाइक दैट, तो वो बिजनेस इनकम है जो सर कह रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कर रहा था ना पॉइंट, जो आप शायद उसी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल उसी की बात कर रहा था मैं। भाई मेरे हिसाब से तो पहले आपको जस्टिफाई करना चाहिए ना कि भाई ये मेरी सेल जेन्युइन कैसी है। भाई अलग डिमोनेटाइजेशन में बहुत डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। अगर आपकी सेल वो उस आइटम की है जो आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल होती है, और जहां परचेजेस के बारे में डाउट नहीं आ रहा और क्वांटिटेटिव टैली करा सकते हैं, वो केस तो इजी है उनको निकालना, और उसमें अगर झगड़ा होगा तो बिजनेस इनकम की वर्किंग आ जाएगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ जिन्होंने लोगों ने सेल दिखा दी, परचेज बोगस है, माल तो स्टॉक तो था ही नहीं, उधार में ले लिया, किसी को दिखाया, वो बोगस ग्रेटर हो गया, तो सेल ऑटोमेटिकली बोगस हो गई। ये बड़े आ रही है। कुछ लोगों ने वो आइटम की सेल कर दी जो उनके बिजनेस से दूर से संबंध नहीं है। बट सर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में है, ये कंटेंशन था लोगों का। सर सब कुछ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है जो आइटम लोग। अब जैसे ज्वेलर हैं, ज्वेलरी का काम करता है, उसने ज्वेलरी की सेल काटी है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखा है। भाई अगर ज्वेलर, मैं तो कह रखा हूँ ना कि अगर आपके नॉर्मल कोर्स में जो आइटम वही रेगुलर है और आपके पास स्टॉक ठीक है, फिर तो दिक्कत है ही नहीं। आप बुक्स ऑफ अकाउंट को जो सुनील जी आप परिभाषा देना चाह रहे हो, अगर आप नंबर 2 के पैसों को सेल करके जमा कर लो तो वो बिजनेस इनकम थोड़ी हो गई। आज की डेट में आप रेगुलर बुक्स रखते हो और 2 करोड़ रुपए कहीं से आ जाएं और आप 10 पर्चे 20-20 लाख के काट के इसके सेल दिखा दो, वो ये तो पूछेगा भाई आपने ये सेल की थी तो आपकी परचेज कहाँ है, स्टॉक का कहाँ से माल आया, कहाँ गया, तो देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट ना। वो सब ज्वेलर के केस में तो, ज्वेलर का केस तो मेरे हिसाब से इजी है इन द सेंस कि मोदी जी ने 7:30 बजे अनाउंस कर दिया था डिमोनेटाइजेशन, और ये सबको पता, अखबार की कटिंग निकाल कर देख लो 9 नवंबर की कि ज्वेलर के यहाँ रात को 2 बजे लाइन लगी रही। बिल्कुल माल तो बिका है, और मेरा कहना तो यहाँ तक है कि अगर वो अगले दिन भी बिका है तो गलती क्या है, वो तो आरबीआई ढूंढेगा कि तुमने क्यों माल बेच दिया। इनकम टैक्स वाले कैसे कह सकते हैं नंबर 2 का मैंने माल बेच के पैसे ले लिए और बैंक ने मुझे कैश कर दिए। तो आप भाई इनकम टैक्स वाले थानेदार थोड़ी है डिमोनेटाइजेशन के। आज की डेट में कोई मैं माल बेचते हुए कोई मुझे नकली नोट दे जाए तो मेरी सेल थोड़ी बोगस हो गई, और वो नकली नोट बैंक में जमा हो जाए, बैंक मेरे पैसे खाते क्रेडिट कर दे, तो क्या होगा? अब ये इनकम टैक्स वाले कहेंगे तुमने नकली नोट लिए थे, तेरे को क्रेडिट नहीं देंगे सेल का। जब कस्टमर दे गया, गड्डी में लग कर आए, बैंक में चले गए, जमा हो गए, काम खत्म हो गया। पर सर डेमो में तो ज्यादातर तो ज्वेलर ही फंसे हुए हैं। हाँ वही उन्हीं को लपेटा हुआ है ना। मैंने नहीं, देखो क्या है, हर एक केस में इन केसेस में मेहनत करने के ऊपर बहुत को डिपेंड करता है। देखो सिंपली ये कहना ज्वेलर अरे करके नहीं निकलता, आप उसकी केस की बिल्कुल बारीकी में घुस जाओ। जो मैंने अभी आपको भाषा दी है, परिभाषा दी है, आप उसको समझो ना। देखो अब मैंने आपको बता दिया भाई ज्वेलर का था, मेरी इसी दुकान पे माल था, 8 बजे मोदी जी ने करा, ये मेरी सेल है, ये 2-2 लाख के कटे हैं, लोगों की लाइनें लगी हुई थी, अखबार की कटिंग है और ये वर्किंग है, बताओ गलती क्या है मेरी? आप ओनरशिप तो करोगे ना एओ की तरफ, सामने वाली पार्टी की तरफ में। और सर कोई दुकान पे घुसा हुआ कस्टमर है, चाहे वो सुबह तक निपटा रहा है, वो मैं कह रहा हूँ मैंने सुबह 6 बजे सेल करी तो गलती किया, मैंने वहां तक एग्जाम्पल दे दी।
हाँ, नेक्स्ट डे भी कर दी वो। अगर मेरी दुकान पे अगर मैंने पुराने नोट लेके दे दी तो उसमें गलती क्या है ये तो बता दो। और वो पुराने नोट बैंक ने ले लिए, मैं तो कह रहा हूँ नकली नोट दे गया, वो पुराने के नकली हो गए ना वो 12 बजे बाद तो चूरन वाले नोट हो गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नए नोट थे नहीं। मैं तो पूछता हूँ भाई, हम आज की डेट में बिजनेस करते हैं, अपना करते हैं, कल को कोई मैं बाजार में सामान खरीदने जाता हूँ और ये दुकान परचूनी वाले दुकान है, उनके यहाँ शाम को 2-4-5 नोट फटे गले और उल्टे पुल्टे आ जाते होंगे और वो भी गड्डी लगा के देते हैं, बैंक वाले ने भी ले लिया, किसी में लिया, आगे जाके सरकते चले जाते हैं, किसने गिनने पैसे। बिल्कुल। तो आप ये कहोगे इनकम टैक्स वाला कहेगा कि तेरी नकली सेल है क्या? वो तो ह्यूमन बिहेवियर पे लेके बैठे हुए हैं। फिर मेरी बुक्स एक्सेप्ट कर रहा है, वो रिजेक्ट कर नहीं रहा बुक्स, स्टॉक मेरा टैली कर रहा है। तो अगर आप ये स्टॉक टैली करा दो, ये करा दो, तो फिर आपका आइटम बड़ा इजी हो जाएगा। केस किसी को केस वो टोटली ह्यूमन बिहेवियर पे लेके बैठा हुआ है जी। that cannot be a ground human behavior because I am a jeweler। मैंने आपको कहा 3 तरह के केसेस हैं। एक केस वो जो मेरी उसी आइटम की सेल है जो मेरे नेचर से, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसमें ह्यूमन नेचर क्या करेगी? उल्टा कॉन्ट्रेरी माई ह्यूमन नेचर तो मेरे फेवर में है कि रात को मेला लगा था, अखबार की कटिंग आएगी। एक केस वो है जो मेरे ट्रेड से रिलेटेड है लेकिन मेरी परचेज के बारे में सीरियस डाउट है क्योंकि मेरे क्रेडिटर फोकस है, जो मेरी स्टॉक था। तीसरा केस है वो आइटम जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वहां ह्यूमन नेचर तंग कर देगी कि आपने मोटर पंप बेच दिए, टुल्लू पंप बेच दिए, किसी ने कोई गियर बॉक्स बेच दिए। तो वो चैलेंज है कि साहब वो एक चैलेंज आता है भाई, आदमी जजेस आर आल्सो दैट वे ह्यूमन बीइंग, तो वो हमारा गाड़ी अटकती कई बार आते हैं। अगर कोई कंज्यूमर वाली आइटम है तो वो आइटम को मेरे हिसाब से रात की सेल में बड़े आसानी से मेहनत करके पेपर वर्क जरूर निकालना पड़ेगा, करने से करा जाता है। ऐसे भी केस आए हैं जहाँ डिपार्टमेंट बोर्ड का कह रहा है मैं पास्ट ट्रेंड पे छोड़ दूंगा। आपको साहब मैं 1 रुपए का माल नहीं बेचता था कैश में, लेकिन उस दिन हो गया तो लोगों का मेला लग गया, मैंने 5% एक्स्ट्रा लिया, मैंने बेच दिया माल, क्या दिक्कत? ये तो कह सकता है कि आपका माल महंगा बिका होगा, सस्ता नहीं बिका होगा, उसका एविडेंस नहीं है। श्याम जी करें फिर? यस वाइंड अप। थैंक यू भैया, थैंक्स श्याम जी। हाँ वाइंड अप करें। हाँ करो। Thank you, Jan Sahab. I sincerely thankful to CA Advocate Vejan Sahab, learned speakers of the day for their excellent deliberation. जैन साहब ने जिस तरह से इंटरेक्टिव डिस्कशन आज 148 पे लिया, मेरे हिसाब से हम सभी मेंबर्स ने काफी बेनिफिट अवेल किया है और मुझे लगता है कि ये इंटरेक्टिव जो सेशन रहा है आज का बहुत ही अच्छा, मतलब एवरी मेंबर्स हैव एंजॉयड एंड जैन साहब ने अलाउ भी कर दिया कि भाई आराम से जो भी क्वेरीज है किसी की भी पूछ लो। तो मुझे लगता है कि आज का जो सेशन था काफी वैल्यूएबल एंड मेंबर्स हैव एंजॉयड अ लॉट and also learned a lot. I am also thankful to all the participants who spared their valuable time to make the seminar educative, interactive, and interactive. Now I would like to seek your permission to conclude today's program. Thank you, sir. Thank you. Thanks to all. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks a lot. Big hand to Jain Sahab. Thank you. ये फर्स्ट टाइम ये अलाउ किया है सर हमने सभी लोगों को। हाँ, बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे लगता है कि शायद आज के सेमिनार से नेक्स्ट टाइम भी हम कुछ ना कुछ आधा घंटे का सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे। हाँ, ये ही जरूरी है आजकल, बहुत है, बहुत जरूरी है क्योंकि यही वन वे कम्युनिकेशन ना, वन वे जो कम्युनिकेशन है प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे ही रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो लॉ इतना पढ़ लिया है, सेमिनार्स इतनी हो गई हैं, ये जो FAQ टाइप पे है ना, लोग पहले ही प्रॉब्लम रखें और अपना सॉल्यूशन की तरफ जाएं। तो 1 घंटा अपन डेलिब्रेशन पे रखें, बाकी का इफेक्टिवली नेक्स्ट सेमिनार आई थिंक हाफ एन आवर क्वेश्चन आवर्स में हाफ एन आवर आता है। हाँ, इफेक्टिवली हाफ एन आवर ही आएगा। तो 1 घंटा रखोगे भी ना तो करते करते 1-1.25 घंटा। और अग्रवाल जी नेक्स्ट टाइम वी विल एंश्योर इट कि हम अपना कम से कम 30 मिनट्स फॉर टू वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन रखें। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि वीडियो भी हम अलाउ कर सकते थे लेकिन वो फिर हो नहीं पाता क्योंकि सारे पैनलिस्ट बन जाते, सारे राइट उनके पास चले जाते। That's why हमने वीडियो अलाउ नहीं किया। नो इशू ना, वो तो जैन साहब ने बोल दिया है, वैसे इसमें इशू नहीं है। हाँ, वैसे जैन साहब ने बोल दिया है, हम अपने पैनल पे ही, जैसे BVSS वाले नहीं रखते कि पैनल पे ही हम ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दें कि क्वेश्चन आंसर पैनल पे ही आ जाएं
लोगों के भी, ऐसा वो कुछ नहीं कर सुनील जी सकते। प्रैक्टिकली आते नहीं है, वो हम लोगों को कह आते तो देते हैं नहीं है। लेकिन वो आते नहीं है। नहीं आते नहीं है, फिर हम ही खुद मेहनत करके क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे सबको फायदा हो जाए, या तो एक वे आउट प्रैक्टिकल जाए। पॉसिबल, वो पॉसिबिलिटी है नहीं। चलो देखो, वो केवल बातों में तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। देखो हाँ। लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस ट्रेंड है, और क्वेश्चन आपके माइंड में वही आएंगे जो आप फेस कर रहे हैं, हाँ ये तो है ही। दूसरे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। यस यस, और दूसरे के क्वेश्चन पे हम ये बंदा रहना भी चाहिए, जैसे हमने उसके ब्याह पे भी डाला क्वेरी या हाँ। उसको, तो वो बंदा होना भी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल। आई थिंक मेरा मेरा तो मानना ये है कि जो 148 के जो नोटिसेज हैं, और यदि मैटर ग्रीवेंसेज है जिसमें शेयर कैपिटल, बोगस कैपिटल या हाँ हाँ। कोई भी है, तो दे मस्ट गो टू द इन रिट पिटीशन। तो शाम ये बताओ कि रिट पे अगर अपन जाते हैं, तो अब जैसे हमारा तो जयपुर का केस है, तो क्या हम यहाँ वहीं का प्रोफेशनल नहीं से नहीं तो नहीं, मदद नहीं? हाँ जयपुर का ही करना पड़ेगा बेसिकली, जब जयपुर हाई कोर्ट का है ना, तो आई तो थिंक फिर क्या इट्स करें? बेटर एक्चुअली। नहीं, जैसे यहाँ पे भी हमारे प्रोफेशनल जैसे जैन साहब जैसे लोग हैं, तो इनके लोग रहते हैं, मतलब रहते जयपुर हैं, वगैरह लेकिन में। होता क्या है ना, समटाइम फेस वैल्यू भी रहती है। अब कोई बंदा वहाँ पे फेस वैल्यू है जिसकी टैक्स मैटर पे, तो आई तो थिंक उसमें टैक्स श्याम फेस जी ये चीज वैल्यू हो है। सकती है ना कि भाई सब सारे लोग सब्जी के रिप्रेजेंट करते ही हैं, तो हाँ जैसे हाँ अब जैन साहब हैं कोई भी हैं, अगर हाँ। उनको अप्रोच किया जाए तो उनके लोग जयपुर में भी होंगे, यही यही मैं बोल रहा हूँ, जैन वो साहब वहां की से करा अपनी। सकते हैं, हाँ वही सुपरविजन मैं जैन कह रहा साहब हूँ, का हो जाए। हाँ, हमारा जैन कॉन्फिडेंस ऐसे सपोज क्योंकि जैन हम तो साहब पे जयपुर है। वाले को किसी को जानते नहीं, हाँ नहीं, लेकिन हमारा एक फायदा सुपरविजन जैन साहब कर लें और वहां पे काम हो जाए। सर, इसमें फायदा ये होगा, ये अपन कोई पब्लिक सुन तो नहीं रही इसको। नहीं नहीं हैं? चलो मैं ही कह रहा था। चलो ठीक है, एक बाद मिनट, में बात रिकॉर्डिंग करते चल हैं। रही है, अभी हाँ। रिकॉर्डिंग चल रही है। लीव अरे कर। हाँ हाँ।